লেখো লেখো, লিখতে কোনো ভুলভাল বলছো। ইট ইজ প্যারালাল টু ওয়ান অফ দি জেনারেটর ইনক্লাইন টু দি অ্যাক্সিস। লেখো ভালো হবে, ভুলে যাবে। ওসব নিজেদের মতো মানি মানি বলছো, বুঝলে? লেখো। বুঝা গেল? Yes, sir. তাহলে এক স্যার সেকেন্ড, নেটওয়ার্কে প্রবলেম করছে, আরেকবার বলুন। এই বলো তো, কেউ ডিক্টেট করো অনেকক্ষণ ধরে, একই আমি নিচু নিচু বলিনি। বলো তো, এই বলো তো, 1 মিনিট বলো তোমরা, আমি 1 মিনিট দাঁড়াও। বলো কি হবে তাহলে উত্তরটা? বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো বলো। When the section plane is inclined to the axis and is parallel to the one of the generator, the section is parallel. Sorry, parabola. হ্যাঁ ঠিক আছে, এই তো এটাই পারফেক্ট আনসার। ঠিক আছে, এরকম ভাবে বলতে হবে। হয়ে গেছে 3টে, হাইপারবোলাটা বাকি রেখে না। And parallel to one of the generators, the section obtained is called a parabola. When the cutting plane is parallel to the axis of the cone, the section obtained is a hyperbola. কি হবে হাইপারবোলা? Parallel with স্যার axis. যখন প্যারালাল টু অ্যাক্সিস হবে। The double cone side of the axis, the section is a parabola. কি? When the section plane cut both the parts of the double cone, মানে দুদিকেই ডবল কোন? প্যারালাল টু অ্যাক্সিস। দেখো অত শুধু দেখো, শুধু আমাকে প্যারালাল টু অ্যাক্সিস বলে দিও, আমি তাতেই খুশি। ঠিক আছে, অত চাপ নিতে হবে। হয়ে গেছে, এখানে সেকশন আর কিছু নেই। What is an ellipse? Ellipse is defined as the locus of a point moving in a plane such that the sum of its distance from the two fixed points. এটা কিন্তু ইলিপসের डेफिनेशन বলছে। ঠিক আছে, इलिप्स का डेफिनेशन बोल रहा है। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, फिर से प्ले कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेना। What is an ellipse? Ellipse is defined as the locus of a point moving in a plane such that the sum of its distance from the two fixed points always remains constant. From the given figure, we can say that CF1 plus CF2 equals length of AB, that is CF1 equals half of length AB. Here, length AB and CD are major and minor axes of ellipse. Mathematically, an ellipse can be described by the equation x square by a square plus y square by b square equals 1. The ratio of the distance of the point. डेफिनेशन समझ में आया क्या बोला यहाँ पे? A parabola. When the cutting plane is parallel to the axis of the cone, the section obtained is a hyperbola. What is an ellipse? Ellipse is defined as the locus of a point moving in a plane such that the sum of its distance from the two fixed points always remains constant. From the given figure, we can say that CF1 plus CF2 equals length of AB, that is CF1 equals half of length AB. Here, length AB and CD are major and minor always remains constant. What is an ellipse? A parabola. When the cutting plane is parallel to the axis of the cone point from the four major and minor axes of ellipse. Mathematically, an ellipse plus CF2 equals moving in a plane
such that the sum of its এই কথাটা ভালোভাবে What is an শোনো, ellipse? বারবার বলছি, কথাটা ভালোভাবে শোনো, লিখতে থাকো। ellipse is defined as the locus of a point Ellipse is defined as a locus of a point, ঠিক আছে? Ellipse is defined as a locus of a point moving in a plane such that the sum moving in a plane such that of its distance from the two fixed points always remains constant. From the given sum of the distance of the two fixed points always remains constant, তাই তো? figure, সাম অফ দ্য ডিসটেন্স পরে বলুন একবার স্যার। দেখো শোনো, always remains constant. Moving in a plane such that the sum of its distance from the two fixed points always remains constant. কি বললো? টু ফিক্সড পয়েন্ট অলওয়েজ রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। sum of the distance, তাই তো, from its two fixed points। বাপরে, এত দেরি। স্যার হ্যাঁ, লিখেছো তাহলে? কে একজন বলে দাও তো, পুরো যে লিখেছো বলে দাও সবাইকে, বলে দাও হোয়াট ইজ ইলিপস এর ডেফিনিশনটা বলে দাও, একজন যে লিখেছো বলো একবার। স্যার বলছি, দ্য এলিপস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ লোকাস অফ পয়েন্টস মুভিং ইন আ প্লেন সাচ দ্যাট সাম অফ ইটস ডিস্টেন্স টু ফিক্সড পয়েন্টস রিমেইন কনস্ট্যান্ট। from its fixed points, তাই তো, from its two fixed point, okay, remains constant। ঠিক আছে, শোনা গেল? ইলিপসের ডেফিনিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে, শোনা গেল? এতক্ষণ ধরে লিখে নেওয়া উচিত তোমাদের, Yes, sir. বা দেখে নিও, কারোর থেকে অসুবিধা নেই। পুলক লিখেছে, ঠিক আছে, ভেরি গুড। চলো, ইলিপসের ডেফিনিশন হয়ে গেল। उसके बाद आता है ई, ठीक है? व्हाट इज ई? व्हाट इज द नेम ऑफ द ई? शॉर्ट फॉर्म ई का फुल नाम क्या है? वेरी गुड, इसेंट्रिसिटी, তাই তো, इसेंट्रिसिटी। स्पेलिंग याद रखना, इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी, अब देखो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग नहीं जानते हो। From the given figure, we can say that CF1 plus CF2 equals length of AB. That is, CF1 equals half of length AB. Here, length AB and CD are major and minor axes of ellipse. Mathematically, an ellipse can be described by the equation x square by a square plus y square by b square equals 1. The ratio of the distance of the point from the এটা দেখো ভালোভাবে, যেখানটা বলছে এইটা দেখো, আর কিছু দেখতে হবে না। focus to the distance of the point from the directrix is called eccentricity. বোঝা গেল? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ দি ডেফিনিশন অফ ইসেন্ট্রিসিটি, ঠিক আছে? ডিস্টেন্স অফ দি পয়েন্ট ফ্রম দি ফোকাস বাই डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, The directive. ठीक है? दिस इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ऐसे वाला तो देखो क्या है, हम शॉर्ट में बोल दे रहे हैं। देखो पॉइंट मींस वर्टेक्स तो हाँ, पॉइंट मींस वर्टेक्स, यहाँ पे पॉइंट के वर्टेक्स से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस, है ना? तो क्या है, ई का वैल्यू क्या है, और ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या, सी था ना, तो ये वी एफ, ठीक है? पॉइंट को वी से रिप्लेस कर दो वर्टेक्स से, क्योंकि दिस इज अ मूविंग पॉइंट, जब कट करता है फोकस का लाइन को तब भी उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट को वी से रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे एफ, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का सी, पॉइंट की जगह वी, तो क्या हो गया, वी एफ बाई वी सी। वी एफ बाई वी सी याद रहेगा तो भी ऐसे बना के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। वी एफ बाई वी सी, डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर इसेंट्रिसिटी का? Yes, sir. এটা বলবো হ্যাঁ, লিখেছো তো এটা? এটা পয়েন্ট বলবো নাকি ভার্টেক্সই বলবো? না না, পয়েন্ট ওটা বলবে। পয়েন্ট বলবো নাকি ভার্টেক্স? না না, ডেফিনিশনের জায়গায় পয়েন্ট বলবে, ঠিক আছে? তারপর জিজ্ঞেস করলে আমাকে পয়েন্টই বলো, ঠিক আছে? ভার্টেক্স না বলে, ভার্টেক্সও বলতে হবে। দেখো, আমি তো নাম্বার দেওয়ার জন্য বসে আছি, অসুবিধা কিছু নেই, ঠিক আছে? বাইরেতে আর কাউকে বলতে যাচ্ছ না, ঠিক আছে? ভিএফ বাই ভিসিটা মনে রাখলে ভার্টেক্সটাই তোমার মাথায় আগে আসবে সহজে, যদি মনে রাখতে চাও, যাদের প্রবলেম হয়, ঠিক আছে? সিএসটি দের কথা বলছি, মেকানিক্যালদের ব্যাপারটা জানা দরকার।
ঠিক আছে, ঠিক আছে তো, ক্লিয়ার তো? ভিএফ বাই ভিসি কি করে বলবে, এভাবে বলতে হবে, ক্লিয়ার তো? অসুবিধা নেই তো? বলো, কনফিউশন নেই তো কিছু? না স্যার, না না স্যার কনফিউশন। আরে কিছুই নেই, এই টুকটাক তো জিনিসপত্র আছে। And for ellipse, it is always less than 1. अब देखो, और इसेंट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू है ना। तो इलिप्स से जगह क्या है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 है, माने वीएफ बाय वीसी इज लेस देन 1। पैराबोला के लिए 1 है और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 है। और ये तीन इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा यहाँ से, क्लियर है हाँ कि नहीं? इलिप्स Clear? के लिए लेस देन 1 है तो सर। हाँ, इलिप्स के लिए लेस देन 1, इक्वल टू 1 इज फॉर पैराबोला एंड ग्रेटर देन 1 इज फॉर हाइपरबोला। क्लियर, सबका याद रहेगा? Yes, sir. और एक क्वेश्चन जो खुद से कर लेना, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और ये सब का एप्लीकेशन, ठीक है। हम एक दो बोल दे रहे, इलिप्स का क्या है, इलिप्टिकल गियर है, ठीक है, और भी कुछ है, ठीक है। याद रखना पैराबोला का क्या है, घर में ही है पैराबोला का एग्जांपल। हाइपरबोला का क्या है, कूलिंग टावर है, ठीक है ना। यहाँ पे कूलिंग, ये कूलिंग टावर का, ठीक है। बस एक एक एग्जांपल हम बोल दे रहे, ठीक है। ये ऐसे कूलिंग टावर का ये जो शेप है, या हाइपरबोला है, ठीक है ना। इलिप्टिकल गियर है उसका, ठीक है। প্যারাবোলাটা বলো কি, প্যারাবোলাটা কি সব জায়গাতে ইউজ থাকে, প্যারাবোলিক কার্ভ কোথায় থাকে, বাড়িতেই থাকে। Road. Cable network. Cable হ্যাঁ, network. ওপরের এটা তো, এটা তো যেটা থাকে তো ছাদের উপরে নাকি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. এই যে রেজ গুলো পড়ে একটা পয়েন্টে ফোকাস করে, তাই তো, একটা পয়েন্টে ফোকাস করে, ঠিক আছে। বা অনেক জায়গায় প্যারাবোলা স্পেসিফিকেশন কি আছে, একটা জায়গায় ফোকাস করায়, বা কোনো ধরনের সোলার, স্যাটেলাইট বললেই তো হবে স্যার, স্যাটেলাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোলার হিটারে কি আছে, একটা জায়গাতেই সোলার এনার্জিটাকে একটা জায়গাতেই কনসেন্ট্রেট করে গরম করার জন্য। সব যাই হোক, ওই নিজেরা এগুলো দেখে নিও, এক্সাম্পল একটা দুটো, আর কিছুই নেই, পাতিয়ে নিস তো। আমার এই পার্টটা হয়ে গেল, এক্সাম্পল করে নিও, এক্সাম্পল দেখিয়ে নিও নিজের থেকে। এই ডেফিনিশন ইলিপসের, ইসেন্ট্রিসিটির, এই কটা ভিএফ বাই ভিসি, ঠিক আছে, কি করে করেছিলাম প্রসেসটা একটু দেখে নিও, ঠিক আছে। এই যে কার্ভ ছিল, এখানে করেছিলাম 5টা দাগ টেনে, 5টা এরকম টেনেছিলাম, তাই তো, দিয়ে এরকম ভাবে লম্বা লম্বা টেনে এরকম ভাবে যেভাবে করেছিলাম দেখে নিও, কাটতে কাটতে গেছিলাম, দিয়ে প্রসেসটা একটু দেখে নিও, ঠিক আছে। ড্রয়িং এর প্রসেস কা দেখ লেনা স্যার ভার্টেক্স, ডাইরেক্ট্রিক্স এন্ড ফোকাসের ইয়েগুলো ডেফিনেশন গুলো পড়বো? না না, ও তো ডেফিনেশন কিছু দরকার নেই। ভার্টেক্স ইজ আ ফিক্সড স্ট্রেট লাইন, ফোকাস ইজ আ ফিক্সড স্ট্রেট পয়েন্ট, আর ভার্টেক্স ইজ আ মুভিং পয়েন্ট, ঠিক আছে। এনাফ, ঠিক আছে। এর থেকে কাকে কোনদিন কে জিজ্ঞেস করো। ডাইরেক্ট্রিক্স না ফিক্স পয়েন্টটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিক্স লাইনটা ডাইরেক্ট্রিক্স, ঠিক আছে, ফিক্স পয়েন্টটা ফোকাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ ইলিপস কার দুটো ফোকাস থাকে? ইলিপস। রিলিফ স্যার। Ellipse. इलिप्स है, তাই তো। इलिप्स का क्या है, इलिप्स का दो फोकस है ना। मेरा खूब एक सुंदर एग्जांपल दी বুঝিয়েছিলাম। যাই হোক, इलिप्स का दो फोकस है, छोटा छोटा चीजें याद रखना थोड़ा, इसमें से हो गया, और भी कुछ नहीं है। थोड़ा जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, ये क्या था, ऐसे था, फिर ऐसे था, जो हम लोग ड्रॉ किए थे, फिर ऐसे था, फिर यहाँ पे बाइसेक्ट किए थे, फिर ऐसे लाइन खींचे थे, फिर इस दो लाइन को बाइसेक्ट किए थे, है ना। फिर यहाँ पे लाइन खींचे थे, फिर इसको यहाँ पे लेकर के इसके ऊपर पॉइंट मार्क किया था, डिस्टेंस लेकर के, फिर ऐसे घुमा के ऐसे बना दिया था, है ना। याद रखना, ये कार्व का प्रोसेस याद रखना, ठीक है। कार्व चैप्टर का थोड़ा प्रोसेस याद रखना, ड्राइंग का प्रोसेस, ठीक है। और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे और कुछ Elliptic is given as two methods. कूलिंग टावर, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, Construction of hyperbola is done. दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। Hyperbola is used in the design of cooling towers. ये देखो, ये जो कार्व बोल रहे थे, ये कार्व देख रहे हो, दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है ना। कूलिंग टावर, पावर प्लांट है। तो इसमें और क्या है कुछ, On line which passes through two steploid curve is used. This आप देखो साइक्लॉइड का डेफिनेशन लिख लो, साइक्लॉइड का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, is important. Firstly, we'll see what is और समझो क्या है। देखो, अगर समझ जाओगे सिंपली तो आपने आप ही डेफिनेशन बना पाओगे। a cycloid. Cycloid is a curve traced by साइक्लॉइड इज अ क्या है, कार्व। a point on the circumference of a circle. साइक्लॉइड इज अ कार्व, ठीक है। अब किससे बन रहा है, एक पॉइंट से बन रहा है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, एक सर्कल का एक पॉइंट,
नीचे वाला, ठीक है, एकदम नीचे वाला पॉइंट, ठीक है ना। कहाँ पे वो पॉइंट? सार्कमफरेंस में है, देखो सर्किल का सार्कमफरेंस में है ना, তো এই বাত লিখা হয় यहाँ पे, বোঝা গেল কেন লিখছি, কেন এই ডেফিনেশনটা এরকম হচ্ছে। which rolls along a straight line without slipping. Cycloid curve বোঝা গেল কি লিখলো डेफिनेशनটা, समझ में आया क्या लिखा है डेफिनेशन इसी के हिसाब से, বোঝা গেল। अरे Yes, sir. साइक्लॉइड इज अ कर्व, ठीक है, ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट। ये देखो एक पॉइंट से ट्रेस्ड हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे ये पॉइंट? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कमफरेंस में है, तो सर्कल घूमेगा तो क्या है, पॉइंट भी तो घूमेगा ना, ऊपर जाएगा ना, हाँ कि नहीं। तो ऐसे एक सर्कल भी तो घूम रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पॉइंट भी घूमता जा रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये अलग अलग जगह पे जो पॉइंट बना रहा है उससे ट्रेस एक मिला के कर्व बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए बोला है सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल व्हिच रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे रोल कर रहा है तभी तो ये कर्व आएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रोल करेगा थोड़ी कर्व आएगा, है ना, ऐसे ऐसे रोल करेगा तो भी कर्व नहीं आएगा ना, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन याद रखना। कुछ कुछ ये 2 3 4 5 ही डेफिनेशन है, याद रखने का थोड़ा तुम लोगों के लिए शायद थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इजी है, समझ जाओगे तो ऐसे ही याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइक्लोइडल गियर, ठीक है, एग्जांपल एक साइक्लोइडल गियर है, ठीक है। is used in Kimbell Art Museum. Let us understand the construction of cycloid. Draw locus और एक था हम लोग का इन्वोल्यूट, इन्वोल्यूट का एग्जांपल क्या है? इन्वोल्यूट का एग्जांपल बोल देना वाइंडिंग और अनवाइंडिंग ऑफ ए थ्रेड, एक সুতোকে খোলা পেঁচানো, ওটাই হচ্ছে ইনভলিউটের এক্সাম্পল, ঠিক আছে। ইনভলিউট গিয়ারসও হয়, ইনভলিউট কার্ভ গিয়ার সেকেন্ড ইয়ারে আঁকবে তোমরা। আর একটা কি হচ্ছে ওয়াইন্ডিং আর আনওয়াইন্ডিং অফ এ থ্রেড, সুতো জড়ানো বা খোলা, ঠিক আছে। তাহলে সবকটা एग्जांपल হয়ে গেল, डेफिनेशन इलिप्स, साइक्लॉइड, ईयर वैल्यू, इसेंट्रिसिटी डेफिनेशन एक्सेट्रा, एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब क्या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या है देखो, देखो इसमें इसेंट्रिसिटी 2/3, ठीक है। तो आई कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इसेंट्रिसिटी 2/3, बोलना पड़ेगा सर VF बाई VC इक्वल्स टू 2/3, ठीक है ना। मतलब VF 2 VC 3, टोटल 50 है, तो VF कितना होगा, 20 होगा, VC कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया है ऐसे नॉर्मली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले 2 प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, क्लियर। यस सर। और ये कार्व का सी प्रोसेस देख लेना 3 4 का, ठीक है, ड्राइंग का प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप, ये थोड़ा देख के रखना। हो गया हम लोग का 5th चैप्टर मोटा मोटी हो गया है, ठीक है। आप मेन चीज में जाते हैं, प्रोजेक्शन पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज प्रोजेक्शन? बोलो, चुप कर लो ना, बोलबो। हाँ। Position is an image or act of obtaining of an image of object. হ্যাঁ ঠিকই আছে, এ বলো তুমি। I'm Pulak. বাহ, পুরো ছেলেটা খুব ভালো ভালো রেসপন্স করছে আজকে। হ্যাঁ বলো, আর কেউ কিছু বলতে চাও? আর নিজের ভাষায় কিছু বলতে চাও কি? চুপচাপ হয়ে গেলে কি করে হবে গো? আরে প্রজেকশন তো সিম্পল একটা জিনিস, ওটাকে ডিসক্রাইব করতে পারছো না? কি প্রজেকশন? কি গো, কারোর আনসার নেই? এটা সিভিলের মতনই কেস হয়ে গেল গো। ঋতিশা বলো। কি গো সবাই চুপ, ঋতিশা আছো? নেই? यस है सर आज বলো কি প্রজেকশন? আরে পুলক তো এটা বললো ওর ভাষা, নিজের ভাষা কেউ বললো? और प्रोजेक्शन 3D में नहीं होता, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा तुम्हारा मतलब हम समझ गए कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है, इसी तरह से हो सकता है। ठीक है, और कोई कुछ? আরে পুলকও তো বললো এটাকে একটু নিজের মতন করে কে বলতে হবে না? अरे यही तो एके दिलम। यहाँ से क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो प्रोजेक्शन मिल रहा है ना, तो इससे क्या क्या यहाँ से एक डेफिनेशन नहीं बना पा रहे हो खुद से? बोलो रूपम बोलो। কি হলো, সবাই আছে তো ক্লাসে, না খুলে রেখে দিয়েছে? কি রূপম নেই তুমি? না না আছি স্যার। বলো। রিয়াজ বলো। কি রিয়াজ কোথায় গেল? রিয়াজ বলো। এ মনে হয় ক্লাসে নেই হ্যাঁ নাকি? স্যার, আছি আছি স্যার। বলো। আরে আছি তো, সে তো সারা জীবনই থাকবেই। ঠিক আছে, আছি আছি উত্তর তো আর শেষ নেই। স্যার এটা একটা সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার। সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার বলতে? এই আমরা দেখে এটা সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার বানাচ্ছি, সেটাই বলছি। না না, আচ্ছা কোনো অবজেক্ট। আরে বলো না, যা পারবে বলো না, চুপ করে থেকো না, এসব চুপ করলে সমস্যা। বলো বলো। জিসান বলো। সৌমদীপ বলো। রোল 12। স্যার বলবো বলো। বিদ্যুৎ বলো। যে কোনো একটা অবজেক্টকে যেটা আমরা প্রজেকশনের দ্বারা আমরা মানে ড্রয়িংটা করি, যেটাকে মানে সেটা 3Dও হতে পারে 2D হতে পারে, যেটাকে আমরা ড্রয়িংটা করি সেটাকে পুরোটাকে কি প্রজেকশন বলে? আর কি বলতে চাও? বলবো বলো। projection is something which an image of a three-dimensional object is projected onto a plane surface without any numerical calculation. বাবা দেখো কোথায় ডেফিনিশনটা কোথায় দেখে বলছো বাবা? নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশনের মানেটা বলো তো। স্যার আগে লেখা ছিল তো, ওখান থেকে নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশন এসব কে বলো? নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশন কি কোথায় এলো এই কথাটা? ওই আগেই বললাম সকালে, এরকম ডেফিনেশন বলো না যেটা নিজেই জানো না মানে কি। বলার কথা বলে লাস্ট স্যার নিজেই কেস খেয়ে যাবো। আরে দেখো সিম্পলি দেখো, এই বাপরে কি আওয়াজ। প্রজেকশন ইজ দি ইমেজ। ইমেজই তো পাচ্ছি নাকি? প্রজেকশন কোন জিনিসের ইমেজই তো। প্রজেকশন ইজ দি ইমেজ formed of an object on a plane or surface. কি বললাম? projection is an image of an object, is an image formed of an object in a plane or a surface, তাই না? ওই পুলকও যেরকম বললো ওটাও ঠিক। ব্যাপারটা তো সেটা কি, এটা একটা ইমেজ ফর্ম হচ্ছে। কার ইমেজ? তোমার না আমার না কার? সবারই ইমেজ অবজেক্টের। ঠিক আছে, কোথায় ফর্ম হচ্ছে? হাওয়াতে তো ফর্ম হচ্ছে না, একটা প্লেন চাই বা সারফেস চাই। এইটাই তো গল্প। গল্প মনে রাখবে, এমনি বানিয়ে বলবে নিজের ভাষায়। কিছু কি ল্যাঙ্গুয়েজ আর মুখস্থ, নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশন এইসব হ্যান ত্যান, বাপরে আমি এসব বুঝি না। চলো কি ঠিক আছে? क्लियर? ठीक है यस सर। प्रोजेक्शन क्या चीज है? एक सिंपली इंग्लिश बोल दिया मैंने, ठीक है, जो हिंदी में हो शायद लिख लिया है तुम लोगों ने। प्रोजेक्शन इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन और ए सरफेस। ঠিক আছে, বা ওটাকে অ্যাক্ট অফ অ্যান ইমেজ ফর্ম, ওরকম। ওই ভাষাতে আমি গেলাম না, আমি একদম সিম্পলি বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি। ঠিক আছে, দেখো একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এটা মানো কি না মানো এটাই সত্যি হবে। যতই জানো যাই বলো, ইফ ইউ কান্ট এক্সপ্রেস, ঠিক আছে, দেন অনেক ডিফিকাল্ট হবে মানে ফিউচারে ভালো কিছু ক্র্যাক করা। ওকে, দেখবে পিছিয়ে যাবে। তো তোমার যদি রেজাল্ট থাকেও ভালো খুব, স্টিল if you can't express what you know, then it is very difficult for you to get a good job. বুঝলে? এগুলো একটু প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? যেটা জানো সেটা বোঝাতে পারছো কিনা। অন্য সময় তো অন্য কিছু তো তোমরা অনেকজন অনেক ভালো কিছু বোঝাতে পারো, যেখানে বোঝানো দরকার আছে সেই সব তো এক্সপ্রেস করতে পারো। আর এখানে এক্সপ্রেস করাতে কি প্রবলেম হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। সবই তো একই জিনিস, তাই না? সমস্যা তো কিছু হওয়ার কথা না। কি জানে, নিজের ভাষায় বা যদি इंग्लिश में प्रॉब्लम হয় अपना लैंग्वेज में बंगाली और हिंदी में ट्रांसलेट, माने
चीज को सोच लेना कि ये होता है और उसको फ्रेम करके बस थोड़ा ग्रामर लगा के बोल देना, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा मीनिंग समझना, मतलब बोलो। স্যার তাহলে ডেফিনেশনটা কি এরকম হবে, দ্য লাইন ফ্রম দ্য অবজেক্ট টু দ্য প্লেন আর কল্ড প্রজেক্ট। কি সব বলছো, এতক্ষণ আমি কি বললাম, ডেফিনিশন বলে দিলাম, এটা কি লাইন ফ্রম অবজেক্ট। স্যার প্রজেকশন লাইনে কথা বলছিলাম। আর লাইন ফাইন আমি আনছি না, ওসব বাদ দাও, প্রজেকশন লাইন এখানে কিছু প্রজেকশন লাইনে আনছি না। সিম্পলি প্রজেকশন, একটা মানুষকে বোঝাতে যাবে, এটা যে জানে না এসব বিষয়ে কিছু, কি বলবে, একটা বাংলা কি হবে, একটা ইমেজ প্রতিফলিত হয়েছে না, একটা অবজেক্টের ছবি যেটা প্রতিফলিত হয়েছে একটা প্লেনে, বা যাই হোক বাংলা ওরকমই তো হবে, এটাই তো বাংলাটা হবে না, বাংলাটাকে করো থিটারিতে ইংলিশ করে দাও, ঠিক আছে। একটা অবজেক্টের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, একটা প্লেন বা সারফেসে, এটাই তো ইংলিশ করছো তুমি সিম্পলি, ঠিক আছে। প্রজেকশন ইজ দি ইমেজ অফ ফর্মড অফ অ্যান অবজেক্ট ইন এ প্লেন অর এ সারফেস, হয়ে গেল। তো ভাবনা চিন্তার কি আছে, যা প্রজেকশন হলো, what are the three elements of a projection? One is observer, one is object and one is projection plane, है ना। what are the three elements of a projection? ये तीनों याद है ना, কি মনে আছে তো? यस सर। आप देखो एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, हम बोलते बोलते जाएंगे, क्वेश्चन नोट करते करते जाना, ठीक है ना। কি গো, তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে, বিশাল আগের দিন রেসপন্স করছিল, অন্য সাবজেক্টে জানি না, বাট মানে এমনি বলছিস, ওরা অল টোটাল অ্যাজ আ ডিপার্টমেন্ট কিন্তু হেভি অ্যাক্টিভ আছে, সব আনসার রেডি, ঠিক আছে, তোমরা পিছিয়ে যাও না। চলো দেখো, বুঝে যাবে, যারা ক্লাসে ছিল না, প্রজেকশন করনি, আইডিয়া পেয়ে যাবে এখন, ঠিক আছে, মোটামুটি যা ডিসকাশন করবো আমরা। आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में और क्वाड्रेंट्स किस तरह से। पॉइंट क्या है, एक तरह उसको रिपारे इस तरह के, ऐसे हम लोगों ने प्लेन ड्रॉ किए थे तब, हाँ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ किए थे, प्लेन होते हैं। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, जो ये प्लेन है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे, थर्ड नीचे और फोर्थ भी नीचे। हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा फर्स्ट यहाँ, तो कितना क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। ये कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एचपी, ये कौन सा प्लेन है, वीपी, ना, समझते हैं ना, ठीक है, ये इको হচ্ছে গান, ওকে খুলে। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज हियर, তাই তো, ऑब्जर्वर কোথায় থাকবে অলওয়েজ, ऑब्जर्वर কোথায় থাকবে অলওয়েজ, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऑब्जर्वर इज फिक्स्ड, ओके। तो ये बन गया मेरा वीपी, तो एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वीडियो में भी बोलेंगे लेकिन वहाँ पे बहुत स्लो है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक व्यू मिलेगा मुझे प्लेन में, ये कौन सा व्यू है मेरा, कहाँ से देख रहे हैं आप, सीधा देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, हमेशा याद रखना, फ्रंट व्यू कहाँ पे मिलेगा, वीपी में, कहाँ पे मिलेगा फ्रंट व्यू, ऑलवेज वीपी में, ठीक है, ऑलवेज फ्रंट व्यू वीपी में मिलेगा। और जो ऑब्जेक्ट था उसको हम जब टॉप से देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा मुझे, एचपी में मिलेगा, है ना, एचपी में, तो एचपी में हमको क्या मिलता है, टॉप व्यू, और वीपी में क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। और देखो अब देखते जाओ, ठीक है, अब एंजॉय करो पिक्चर। यहाँ पे होगा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे होगा और फोर्थ यहाँ पे होगा। ये जो जिसका जो क्वेश्चन है वीडियो के अंत में क्वेश्चन करना मुझे, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो। आज नीचे और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं, ये किस किस चीज से मिलकर, इसको हम डिनोट करते हैं एचपी के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन की ये नोटेशन है। और जो ये वाला प्लेन है
इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। इसकी जो नोटेशन है वो है वीपी। वीपी मींस वर्टिकल प्लेन। इन दोनों प्लेन्स के बीच में यहाँ पे एक ग्राउंड लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हम इसको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अगर हमारा कोई भी पॉइंट अबोव एचपी है, अबोव मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है, इस वर्टिकल प्लेन के सामने है, तो वो पॉइंट कहाँ पे कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होगा? अगर कोई पॉइंट इस एचपी से ऊपर है मींस अबोव एचपी, लेकिन इस वर्टिकल प्लेन के पीछे है, बिहाइंड वीपी, तो वो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर कोई पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है मींस बिलो एचपी, और इस वर्टिकल प्लेन से पीछे है मींस बिहाइंड वीपी, तो वो कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है बिलो एचपी, और इस वर्टिकल प्लेन के सामने है मींस फ्रंट ऑफ वीपी, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम पॉइंट का पता लगा सकते हैं। अगर हमें पता है कि अबोव एचपी फ्रंट ऑफ वीपी है, अगर हमें दिया है कोई पॉइंट, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। तो इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। বোঝা গেল এতটা? यस Yes, सर, sir. বোঝা यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस किस तरह से बनते हैं? तो हमने ये क्वाड्रेंट्स ले लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और फोर्थ। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस रेफरेंस लाइन को हम लिख लेते हैं x, कैपिटल X, और इसको कैपिटल Y। ये लाइन हम ड्रा कर लेते हैं साइड के अंदर, जो है XY। ये XY लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। अब हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर हम किसी पॉइंट को स्पेस के अंदर दिखाते हैं, जैसे इन दोनों प्लेन के बीच में है ये पॉइंट, तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो हम इसे कैपिटल लेटर P से डिनोट करेंगे। अब जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखेगा, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये इस पॉइंट को देखेगा, तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी? जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इस पॉइंट की प्रोजेक्शन है जो वो इस वर्टिकल प्लेन पे पड़ेगी। तो ये हमारा है फ्रंट व्यू। तो इस प्रोजेक्शन ये जहां पे पड़ेगी वर्टिकल प्लेन पे, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर और उसके ऊपर डैश होगा। मींस अगर ये पॉइंट P है कैपिटल के अंदर, तो ये स्मॉल लेटर P डैश के साथ हम फ्रंट व्यू को डिनोट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू की। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखे, तो टॉप व्यू में इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी? वो पड़ेगी हमारी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। इसको हम डिनोट करेंगे सिर्फ स्मॉल लेटर से P। ये कैपिटल लेटर P है, ये स्मॉल लेटर P। ये होता है टॉप व्यू की नोटेशन। फ्रंट व्यू के ऊपर हम डैश लगाएंगे और टॉप व्यू को हम सीधा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो इसकी प्रोजेक्शन टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्योंकि हमें जो ड्राइंग बनानी है वो 2D के अंदर बनानी है। ये तो प्लेन है जो 3D के अंदर है, ये पॉइंट भी 3D स्पेस में है, तो हमें इसकी प्रोजेक्शन को लेकर इसको 2D के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये जो এই দাঁড়া এক সেকেন্ড, Sir, ম্যাডামকে pause ফোন, नहीं करो। হ্যাঁ ম্যাডামকে ফোন করি।
হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? এই Yes, কতটা yes. বুঝলে? কতটা কি বুঝলে? एत अब्दी क्लियर तो सबका? यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का फ्रंट भी यहाँ पे है, टॉप भी यहाँ पे है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हमेशा हम किसी भी प्लेन को, मतलब जब हम ड्राइंग करेंगे, हम ऑलवेज एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री में रोटेट करते हैं। ऑलवेज एचपी को, किसको? हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं 90 डिग्री में, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, याद रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री में, कहाँ जा रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? नीचे, यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. यस सर, क्लियर। यस सर। तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है। तो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये मेरा फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा और नीचे यहाँ पे जब टॉप व्यू आ जाएगा, नीचे खोलने के बाद ये प्लेन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, लाइन से जोड़ दो। ये मेरा हो गया क्या? फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। और फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर ऑलवेज कौन सा फिर प्लेन रहेगा? ये कौन सा प्लेन है? ऊपर कौन सा रहेगा लाइन? वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर? फास्ट एंगल का कॉन्सेप्ट, पॉइंट प्रोजेक्शन का पूछेंगे, पॉइंट प्रोजेक्शन देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखते जाओ। प्लेन टर्म में पढ़ बोल लो ना। आज से तो सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रोटेट करेगा 90 डिग्री, और जो ये पॉइंट है ये भी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, वर्टिकल प्लेन पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये है टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू ऊपर बना और टॉप व्यू बना नीचे, फर्स्ट एंगल के अंदर। तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हम बना लेंगे, जो फ्रंट व्यू है ऊपर और टॉप व्यू है वो नीचे, इन दोनों को एक लाइन के साथ मिला देंगे। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू बनेगा नीचे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे। अब बात करते हैं सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे जो कि है एक्स वाई। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर पी से, जब फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। तो फ्रंट व्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर और डैश के साथ, पी डैश। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया वर्टिकल प्लेन पे। जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इस प्लेन पे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर पी से, जो भी स्मॉल लेटर होगा। तो हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे बना और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमेशा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करते हैं ताकि हम इसको ऑर्थोगोनल ड्राइंग में चेंज कर सकें, 2D के अंदर चेंज कर सकें। तो हमारा ये प्लेन रोटेट करेगा ऊपर की तरफ और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऊपर और नीचे हो सकता है। ये तो हम सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ पे आएंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में? दोनों ही ऊपर आएंगे इस रेफरेंस लाइन से। तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं इस रेफरेंस लाइन पे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों हमारे इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है। तो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनते हैं इस रेफरेंस लाइन से। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? हम रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेंगे, ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई। एक पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट एंगल का या फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जब हम इसकी प्रोजेक्शंस लेंगे, जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, वर्टिकल प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे पी डैश के साथ। और जब टॉप व्यू हम देखेंगे, टॉप व्यू के अंदर क्या होता है? ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है थर्ड एंगल में। तो इसलिए हम ज्यादातर फर्स्ट एंगल का यूज करते हैं। तो टॉप व्यू में जब हम इसको देखेंगे
तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जो कि है टॉप व्यू। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करेगा और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो हमारा टॉप व्यू ऊपर है थर्ड एंगल में और फ्रंट व्यू नीचे है। तो हम इस रेफरेंस लाइन के ऊपर नीचे इनको बना लेंगे। तो फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू ऊपर है। ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का उल्टा है। ये है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी तरह फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन समझ में है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है? ये सर उल्टा हो जाए। यस सर। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर कौन सा प्लेन रहेगा? टॉप व्यू। HP अरे प्लेन जे अच्छी बोल से टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे ऊपर कौन सा व्यू, टॉप व्यू, नीचे फ्रंट व्यू। तो दो डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, प्लेन का डिफरेंस और व्यू का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस मिल गया हाँ कि ना? दोनों डिफरेंस मिल गया हाँ कि ना? ठीक है, दोनों डिफरेंस मिल गया। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बाद में बोल रहे हैं, तीनों डिफरेंस, दोनों डिफरेंस मिलकर अब देखते हो में क्या होगा। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। कोई पॉइंट होगा जो फोर्थ एंगल में होगा। जब हम इसको देखेंगे फ्रंट से तो इसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी वर्टिकल प्लेन पे, इस प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे P डैश के साथ, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। फिर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, नीचे इसी वर्टिकल प्लेन। तो ये जो फोर्थ एंगल है वो सेकंड एंगल का बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है दोनों नीचे बनते हैं रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पे हम उनको डिनोट कर देंगे P डैश और P के साथ फ्रंट और टॉप व्यू को। तो ये हमारे दोनों इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनेंगे। तो ये है बेसिक्स प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट का इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। थैंक यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बुझा लो पॉइंट सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल, व्हाई वी डोंट यूज सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल, ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बोलो। ओवरलैप हो जाए। हाँ वेरी गुड। Since the front view top view both are getting overlapped, so it is very difficult for us to understand the drawing, তাই তো? আমরা ড্রয়িংটা বুঝতে পারবো না কি হচ্ছে, এটা যদি এরকম এরকমই হয়, যদি কিছু এটা বুঝতে পারবে ড্রয়িংটা, ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ হয়ে গেলে পারবো না, তাই তো? So তাই জন্য since the drawing are getting overlapped, we don't use first angle, third angle, second and fourth, since it is difficult for us to get a clear idea of the drawing. Okay, হয়ে গেল। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन के किस तरफ ड्राइंग होता है, ड्राइंग फॉर्म होता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर ऊपर, सेकेंड एंगल ऊपर, और फोर्थ एंगल में नीचे। वेरी गुड। কে রেজ হ্যান্ড করছে? স্যার ভুল করে চলে গেছিল। আবার করে যাচ্ছে। আচ্ছা আর হয়নি যে। ये ध्यान से देख लो, ये पूछेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट एंगल अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, सेकंड एंगल अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, थर्ड बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, फोर्थ স্যার বিহাইন্ড ভিপি হবে তো। কোনটা বিহাইন্ড वीपी হবে? স্যার সেকেন্ড আপনি বললেন, ইন ফ্রন্ট বললেন। ও যাই হোক, इग्नोर माय मिस्टेक, ठीक है? और যাই হোক, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, याद रखना, ठीक है? आज बहुत अच्छे से हम पूछेंगे, बताओ तो बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी कौन सा क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट? तुरंत आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? समय 2-3 सेकंड, ठीक है ना? ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अच्छे से। तो क्या बोलने जा रहे थे, अब बता कौन से कंडीशन में सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही पॉइंट होगा? कौन सा कंडीशन में सेकेंड क्वाड्रेंट में फोर्थ ये टॉप फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू सेम पॉइंट होगा?
দেখি এটা সিম্পল কমন সেন্সের কোশ্চেন, দেখি কে বলতে পারে, সে ভাববো সে ইন্টেলিজেন্ট, সত্যি ইন্টেলিজেন্ট। তো क्वेश्चनটা दादा कौन सा कंडीशन में हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही पॉइंट मिलेगा, बोलो। পয়েন্ট হলে 2D ফর্ম করার সময় 90 ডিগ্রিতে যখন এইচপিটা 90 ডিগ্রিতে ঘুরে আসবে তখন হবে। ঘুরে তো সেটা এখনো পয়েন্ট পাচ্ছি, যে কোনো সময় তো সেই একটাই পয়েন্ট কখন পাবো, হচ্ছে না আনসার। পয়েন্টটা দুটো প্লেন হবে 90 ডিসটেন্স দুটো সেম থাকলে স্যার। কে বললো ডিসটেন্স তো সেম থাকবে? রূপম বললো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, ডিসটেন্স দুটো সেম থাকবে। আরে এতক্ষণ বুঝে এই বুঝলে, এই দেখো এখানে একটা পয়েন্ট বাবা, এখানে একটা পয়েন্ট আর এখানে একটা পয়েন্ট, তো দুটো পয়েন্ট কখন এক হবে? যখন ইন ফ্রন্ট বিহাইন্ড ভিপি এন্ড অ্যাবভ এইচপি ডিসটেন্স সেম হবে, দুটি যদি 50-50 হয় তাহলে একই পয়েন্টে গিয়ে তো মার্চ করবে না। এটা কবে কমন সেন্স হয়ে গেল क्वेश्चन, কিন্তু এগুলো এমনি ডিসকাস করছি না। अब साइड व्यू कौन सा प्लेन में मिलता है? प्रोफाइल प्लेन। वेरी गुड, কে বললো? স্যার ইটস মি। কি এটা একটা আনসার, ইটস মি, আমি কি দেখতে পাচ্ছি ইটস মি? তোমার নাম কি? श्रीकांत। सर श्रीकांत, सॉरी। प्रोफाइल प्लेन में मिलता है साइड व्यू, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलेंगे या राइट हैंड साइड भी बोलेंगे? যে দিকটা দেখবো তার উল্টো দিকটা বলবো। हाँ वेरी गुड। तो ये फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है, याद रखना। ऑब्जर्वर इज हियर, ठीक है। आप फास्ट एंगल में देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे मिलता है? ऑपोजिट साइड में, है ना। फास्ट एंगल में कहाँ पे इमेज कहाँ पे मिलता है? ऑपोजिट साइड में। तो इस तरफ मुझे इमेज अगर मिलना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस प्लेन में, तो मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा? इस साइड से, ऑपोजिट डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब जहां से, अब इस हैंड, अब इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा फ्रंट डायरेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट श्योर राइट নয়? রাইট স্যার। লেফট থেকে তো রাইট দেখছি। আরে লেফট আবার আমি বললাম, বলি রাইট স্যার। স্যার আমি যদি ওখানে দাঁড়াই, ওই প্রোফাইল প্লেনটা তো আমার রাইটেই হবে। হ্যাঁ মানে স্যার, আরে আমি এইটা অ্যারোটা জিজ্ঞেস করছি আর প্রোফাইল প্লেনে চলে গেলে, আমি তো জিজ্ঞেস করছি এটা কোন ডিরেকশন, তুমি প্রোফাইল প্লেন গল্প দিচ্ছ কেন? আমি তো জিজ্ঞেস করছি এখানে অনুযায়ী, এখানে দেখছি এটা তো लेफ्ट सर। अच्छा देखो, लेफ्ट से देख रहे हैं इमेज कहाँ पे मिल रहा है? राइट पे है ना, इमेज मिल रहा है राइट पे। तो जहाँ से देख ये जिस साइड से देख रहे हैं हम लोग, उसी के हिसाब से व्यू का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा व्यू होगा, कौन सा नाम देंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये ऐसे खोल जाता है प्लेन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो साइड व्यू ऑलवेज किसके मतलब किसके साइड में रहता है? ऑलवेज कौन सा प्लेन के साइड में? ये खोल के ऐसे वीपी के साथ रहता है ना, वीपी के अलोंग द लाइन रहता है ना, वीपी के लाइन रहता है, ठीक है। साइड व्यू याद रखना, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो एक पिक्चर दे देंगे, उसको पूछेंगे ये कौन सा व्यू है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, बताना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, याद रखना। अब एक बात देखो यहाँ पे, अब देखो ये कौन सा व्यू है बताओ? कौन सा व्यू है ये? फ्रंट व्यू सर। टॉप व्यू ना सर, फ्रंट व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। এটা কোন ভিউ? टॉप व्यू सर, टॉप व्यू सर। और ये साइड व्यू। अरे देखो ऑलवेज टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू अलाइन रहता है, ठीक है ना।
एक ही लाइन में। यहाँ पे भी देखो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, आप देखो उसके साथ क्या है, एक और है जो नीचे है, उसका मतलब क्या है, ये ऑलवेज टॉप व्यू होगा, है ना। ऊपर देखो इसके साथ एक और है, मतलब ये क्या है, साइड व्यू है, और दोनों अलाइंड है, मतलब ये टॉप व्यू होगा या फ्रंट व्यू होगा। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करें, इसके साइड में क्या है, इसके साइड में साइड व्यू, एक और पिक्चर है, मतलब क्या है, एक সাইড ভিউ, এই করছো না, সাইড ভিউ হচ্ছে এটা মানে তার মানে নিচে वाला टॉप व्यू है, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सिंपल। ये कौन सा है, कौन सा साइड व्यू है ये, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, इधर से देखेंगे, इधर से होगा राइट हैंड साइड व्यू, सिंपल। ক্লিয়ার তো, কিছুই নেই স্যার এটা স্যার এবার বলবেন। এই কেটে দে, আর কেটে দিলাম। কোনটা কোনটা বলো। আরে দেখো ওই যে ফার্স্ট first অ্যাঙ্গেলে, ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল টপ ভিউ আর ফ্রন্ট ভিউতে একটা লাইনই থাকবে অলওয়েজ। এবার দেখতে হবে সাইড ভিউটা উপরে আছে না তলায় আছে। উপরে থাকলে ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, তাহলে এটা ফ্রন্ট ভিউ হয়ে যাবে। আর যদি তলায় থাকে তাহলে তলারটা ফ্রন্ট ভিউ হয়ে যাবে। যেটা একা থাকবে, যে ব্যক্তিটা একা, যে সিঙ্গেল থাকবে সে হচ্ছে টপ ভিউ, আর যে কাপল থাকবে সে হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ সাইড। ঠিক আছে, বোঝা গেল এবার? ঠিক আছে, এর থেকে আর কোনো ভাষা Yes, পাচ্ছি sir. না। हिंदी मोटामोटी हो गया। अच्छा, हम लोग जो प्रोजेक्शन सिंबल ड्रॉ करते हैं वो कौन सा सॉलिड का है? হ্যাঁ এ বললে পুলক নাকি? বাহ, ছেলেটা খুব পড়েছে, ভালো, হেভি পারফর্ম আজকে দিচ্ছে, একদম ঠিক। ফার্স্ট টার্ম অফ কোন মেকানিক্যাল যদি না বলতো সব সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে এসবি স্যার যদি ক্লাস নাই ড্রয়িং, পরের বছর তোমাদের বলবে কিছুই শিখিয়ে পাঠায়নি, মান সম্মান সব ডুবিয়ে देवे गो তোমরা। ये चीज क्या है, अभी सुबह में तो पढ़े थे ना, सर्किल को परपेंडिकुलर कट रहा है, भूल गए ये उसको। ফার্স্ট টার্ম অফ কোন, যদি আজকে ভাইবা হতো আমি ভাবছি কি নাম্বার দিতাম তোমাদেরকে, বেঁচে গেলে স্টেট काउंसिल জন্য এক সপ্তাহ টাইম পেলে सब डिस्कस करो। ये क्या है, इसको काटने पर सर्कल बनता है, वो पढ़े थे ना कॉनिक सेक्शन में। तो ये कौन सा सॉलिड है, इस सॉलिड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। लिख लो, अच्छे से लिख लो, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, ठीक है ना। एफ आर यू एस टी आर यू एम, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। सूरज कुमार समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट टर्म एफ आर यू एस टी आर एम, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, जिसका प्रोजेक्शन सिंबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग शीट में जो प्रोजेक्शन सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा सिंबल है, कौन सा प्रोजेक्शन सिंबल है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल? फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है, वो सब क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, आज डिस्कस करेंगे थर्ड। यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, प्लेन। और थर्ड एंगल में क्या होता है, ऑब्जर्वर, ये मतलब অবজারভার মানে ফার্স্টে অবজারভার থাকে, তারপরে অবজেক্ট থাকে, তারপরে প্লেন থাকে। একই বললে, ফার্স্ট এঙ্গেল থার্ড এঙ্গেল মানে অবজারভারটা তো উল্টো দিকে থাকবে, মানে ঠিক নেই, কি কে বললো উল্টো দিকে থাকবে, মানেটাই ভুল, পুরো মানেটাই ভুল বললে, মানে আর কিছু নেই। প্লেন ইজ ইন বিটুইন অবজারভার এন্ড অবজেক্ট। হ্যাঁ, অবজারভার ইন বিটুইন অবজারভার এন্ড অবজেক্ট। হ্যাঁ, কি বলছো, আগে যা কি অমিত ছিল নাকি? আচ্ছা, হ্যাঁ, অমিত পড়াশোনা করছো না, ছেড়ে ফেলে দিয়েছো নাকি? দেখছিলাম, ভুল করে तो इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द मेजर डिफरेंस देखो, प्लेन एचपी वीपी ऊपर नीचे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऊपर नीचे, वो सब सेकेंडरी डिफरेंस है। मेन डिफरेंस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसे बोलना पड़ेगा, डिफरेंस जब पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ग्रुप में पूछेंगे एक बार, मतलब रोल नंबर वाइज है ना, सभी ग्रुप में ये क्वेश्चन तो पूछेंगे किसी ना किसी को। In first angle projection the object remains in between the observer and the projection plane, whereas in case of third angle projection the projection plane remains in between the observer and the object। मिडिल में प्रोजेक्शन प्लेन है, यहाँ पे मिडिल में ऑब्जेक्ट है, बाकी सब अपने आप ही बना लोगे, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ, यस सर, কিছুই তো নেই, সবই তো। এরপর কি আসবে, লাইন প্রজেকশন, তাই তো। লাইন প্রজেকশন, চলো লাইন প্রজেকশন দেখিয়ে কি আছে।
ভালোভাবে বুঝবে, this is the most vital portion that we are going to start. If you find this video interesting, then please like and share it. Also, leave your comments below. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Let us understand the term projection of a line. A line AB may be situated in space in any of the 4 quadrants. Consider line AB is situated in first quadrant. The position is obtained by extending the projectors onto the planes. Now, ये क्या है, ये मेरा मेन लाइन था, है ना, लाइन प्रोजेक्शन जो एक्सरसाइज 6 में है, ये हम लोग का मेन लाइन था, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे, दिस इज आवर व्यू, दिस इज आवर व्यू, ऑब्जर्वर इज ओवर हियर। तो यहाँ से ये क्या बन गया मेरा, कौन सा व्यू बन गया, ये मेरा फ्रंट व्यू। बोल लो এটা কোন অ্যাঙ্গেল প্রজেকশন, फर्स्ट एंगल। और ये मेरा क्या बन गया ऊपर से देखने पे, W। वेरी गुड, ठीक है। सब एक एक चीज क्वेश्चन है, ठीक है। अभी से जो चीज बताएंगे वो एक एक सभी चीज क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये सपोज जो इसको एक स्केल समझो और पेन समझो, जो भी है, जब यहाँ से देख रहे हो पूरा सीधा इस पेन को या स्केल को, यहाँ पे सपोज ये 100 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे जिसका जो प्रोजेक्शन तुमको मिलेगा वो क्या 100 मिलेगा या दूसरा कुछ मिलेगा? 100 मिलेगा, है ना, पूरा हमको दिखेगा। उसका मतलब क्या है, कौन सा लेंथ दिखेगा हमको, ट्रू लेंथ। कौन सा लेंथ? ट्रू लेंथ। और जब ऊपर से हम लोग देखेंगे स्केल को, देखो इसको, ये हिला हुआ है ना, हिला हुआ है ऊपर से, तो हमको इसमें क्या दिख रहा है, इस लेंथ को देखो, नॉर्मल आंखों से देखो, ये क्या छोटा या बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना। तो ये मेरा क्या, कौन सा लेंथ बढ़ गया है? अपरेंट लेंथ, ठीक है। वेरी गुड, याद रखना, अपरेंट लेंथ, ये ट्रू लेंथ, ये अपरेंट लेंथ, ठीक है। क्लियर इतना तक सबका? यस सर। हाँ, अब देखो, जहां पे ट्रू लेंथ बनता है उस प्लेन के साथ ऑलवेज पैरेलल रहता है। जहां पे ट्रू लेंथ TL बनता है उस प्लेन के साथ ऑलवेज पैरेलल रहता है वो लाइन। कौन सा प्लेन में ट्रू लेंथ बना है? BP में बना है। तो कौन सा प्लेन के साथ पैरेलल रहेगा? BP के साथ, ठीक है। सर, तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, जिसके साथ पैरेलल है वहां पे ट्रू लेंथ मिलेगा ऑपोजिट, या फिर जिसके साथ ट्रू लेंथ है उसके साथ पैरेलल है ऑपोजिट बोल सकते हैं ना, वाइस वर्सा, हाँ कि ना? यस सर। वेरी गुड। अब छोटा कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा प्लेन में? HP। छोटा देखने का मतलब ही इनडायरेक्टली क्या है, उस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। क्या है? उस प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। आप खुद कॉमन सेंस से सोचो, कोई भी चीज अगर हिला हुआ है तभी तो छोटा दिखेगा ना, सीधा अगर नहीं है, हिला हुआ है, इंक्लाइंड है, वहीं पे छोटा दिखेगा। तो इस ये प्रॉब्लम में कि कौन सा प्लेन के साथ इंक्लाइंड है? HP, है ना। और एंगल कहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। अब बहुत जन ऐसे सोचते हैं HP के साथ एंगल यहाँ पे कैसे बन गया, ये तो HP के साथ ही नहीं है। तुम सिंपल जब जियोमेट्री पढ़े हो स्कूल में, इसको एक्सटेंड करने पर ये लाइन बनता है, सेम एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल सेम होता है, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है ना। अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है किसके साथ? HP के साथ, है ना, HP के साथ। लेकिन हमको एंगल कहाँ पे दिख रहा है? ये थीटा VP पे दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली जिसके साथ एंगल करता है, लेकिन ड्राइंग में, अब देखो थोड़ा इसको बढ़ाते वीडियो फिर बोलते नहीं तो। Opening the horizontal plane or rotating the plane in clockwise direction, we get the following result. Let us see positions of a line with respect to each. Let us see positions extending the projectors onto the planes. Now, or rotating the plane in clockwise direction, we get the following result.
अब देखो इस प्रॉब्लम में हम लोग का एंगल हमको किसके ये कौन सा प्लेन के साथ मिला था, एचपी के साथ, है ना। लेकिन जब हम लोग ड्राइंग में वो कहाँ पे प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलता है, थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे। अभी ड्राइंग में प्रोजेक्शन कौन सा प्लेन में मिला हमको, वीपी में मिला। तो ये उल्टा है, ठीक है। एक्चुअली जिसके साथ एंगल करता है, ठीक है, वो लाइन, लेकिन प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलता है, ऑपोजिट में। तो ये वाला ड्राइंग अगर तुमको देंगे हम, ठीक है, बोलेंगे कि बताओ तो किसके साथ एंगल किया हुआ है, तो क्या बताओगे, वीपी देख के वीपी के साथ एंगल किया हुआ है, या फिर क्या बताओगे एचपी के साथ एंगल किया हुआ है, कौन सा होगा आंसर? ভিপি কে वीपी साथ एंगल করে আছে, এইচপি সাথে অ্যাঙ্গেল করে আছে। ও এইচপি সাথে অ্যাঙ্গেল করে এই সব বলছো অমিত আবার। আরে স্যার কোশ্চেনটা বলেছেন না উল্টো বলে সব ঠিকই তো গেল। বলছিলাম তখন তারপরে देखो आप देखो इसको, सिर्फ देखो इसको, देखिए देखो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जा रहा है। यहाँ पे देखो पूरा लेन दिख रहा है हमको, मतलब वीपी के साथ पैरेलल है कंडीशन, और यहाँ पे एंगल बन रहा है वीपी में, मतलब एक्चुअली एचपी के साथ इंक्लाइंड है, और जो भी है एट एन एंगल थीटा। तो ऐसे ऑपोजिट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम पूछेंगे, मैं मैनुअल का सीट दिखा के हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या था, तो ये कंडीशन अगर समझ जाओगे तो ऐसे ही बता दोगे, या फिर मैनुअल का क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला देखो और भी क्लियर होगा। Let us see positions of a line with respect to HP and VP. A line may occupy infinite number of positions in space with respect to HP and VP. The various positions may be classified into the following types: perpendicular to one plane and parallel to the other, parallel to both HP and VP, inclined to HP and parallel to VP, inclined to VP and parallel to HP, and line inclined to both HP and VP. ये सब कंडीशन है, ठीक है, जो भी है इसी कंडीशन में होगा, ठीक है। ये वाला छोड़ो, ये सिलेबस में अभी एक्सक्लूडेड किया हुआ है, पहले साल तक था। ये 4 कंडीशन अच्छे से याद रखना, ठीक है, इनमें से ही फ्रेम होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये याद रखना, ठीक है, अच्छे से। 4 जो हम लोग किए भी है मैनुअल में, जो हम लोग ये वाला किए हैं, ये दोनों तो इजी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। Let's see a line perpendicular to one plane and parallel to other. In this, a line can be perpendicular to HP and अब ये लाइन देखो, ये लाइन पूरा हमको कहाँ दिखेगा, देखेंगे तो वीपी पे वीपी देखेगा, मतलब वीपी के साथ कैसा है, पैरेलल है ना। और ये लाइन एंगल एचपी के साथ कितना कर रहा है, पूरा सीधा है, तो कितना एंगल कर रहा है, 90 डिग्री। सैटिस्फाइड, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, पैरेलल टू अदर, हां कि ना। यस सर। तो अगर हम पूछे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अगर हम पूछे कि बता तो एक ऐसा ड्राइंग करके मुझे बता कंडीशन कि वीपी के साथ पैरेलल है और परपेंडिकुलर है एचपी के साथ, तो ऐसे एक लाइन मुझे प्लेन ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे लाइन मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे, सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया कि पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन कैसा होता है। और अगर एचपी के साथ पैरेलल हो और वीपी के साथ परपेंडिकुलर, कैसा होगा, ये कैसा होगा, ऐसा टाइप का होगा, हां कि नहीं, एचपी तो लाइनটা হবে ठीक আছে। parallel to VP and perpendicular to VP and parallel to HP. For the first case, the देखो सेम चीज है, representation of a line is as shown and its orthographic pattern. अच्छा एक मुझे रिप्लाई दे सकते हो, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? একটা অ্যাবভ ছিল, ওটা অ্যাবভ আর এটা वेरी गुड। ये ऑन एचपी है, मैनुअल में कंडीशन है, देख लेना, ये ऑन एचपी है, एचपी के ऊपर अबव कोई डिस्टेंस नहीं है, अबव डिस्टेंस है 0 और इसमें अबव वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एक और क्या क्वेश्चन फॉर्म हो गया, अ लाइन मुझे ड्रॉ करके दो जो परपेंडिकुलर टू एचपी है, परपेंडिकुलर टू वीपी है, पैरेलल टू एचपी है एंड ऑन एचपी। तो कहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करने से चलेगा, ऑन एचपी अगर ऐड कर दिया तो नहीं चलेगा, कहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे। एंड अबव एचपी बोलेंगे तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे, समझे, हाँ कि ना। छोटा छोटा पॉइंट देकर के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। is also shown. In this case, front view is vertical line, which is true length, and top view is a point.
For the second case, the representation of a line is as shown and its orthographic pattern is also shown. इसका प्रोजेक्शन ये है एज नॉर्मल और इसका प्रोजेक्शन ये है। अब एक बात बताओ, प्रोजेक्शन में कौन सा कंडीशन में मुझे एक पॉइंट मिलता है? लाइन प्रोजेक्शन में कौन सा कंडीशन में मुझे एक पॉइंट मिलता है? आंसर शुड बी जब एक যখন পারপেন্ডিকুলার থাকবে কোনো প্লেনের সাথে तब हमको एक पॉइंट मिलता है। सिंपल, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, इसके बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन हो सकता, जो डिस्कस किए वही होगा, ठीक है। In this case, front view is a point and top view is a vertical line which is true length. Let's see a line which is parallel to both HP and VP. For this case, line AB is parallel to both HP and VP as shown, and its orthographic pattern is also shown. In this case, front view and top view both are parallel to the line XY. And देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। कौन सा कंडीशन? ये एक सिंपल कंडीशन है, ये लाइन ड्रॉ करके मुझे दे देना, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। अगर ये लाइन यहाँ पे होता ऑन एचपी होता ताले ना, तब भी क्या बोल सकते, ये बोल सकते थे कि पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। यस सर, हाँ सर, हाँ सर। प्रोजेक्शन कैसा होता? यहाँ पे ही हो जाता मेरा टॉप व्यू, है ना, सॉरी फ्रंट व्यू, ठीक है। उल्टा पल्टा बोलते, रेफरेंस लाइन है सर, रेफरेंस लाइन नहीं देखा जाता प्रोजेक्शन। यहाँ पे मेरा मिल जाता मेरा फ्रंट व्यू और नीचे क्या बन जाता मेरा टॉप व्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरा बन जाता टॉप व्यू, ये मेरा टॉप व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू। तो थोड़ा चेंजेस हो गया, सेमी ड्राइंग है, सेमी दोनों ही लाइन मिलेगा, लेकिन अबव और इन फ्रंट, ठीक है। या फिर अगर लाइन यहाँ हो जाता तो ये वाला डिस्टेंस नीचे नहीं रहता, ऊपर हो जाता, है ना। तो ये छोटा छोटा चेंजेस है, ठीक है ना। पैरेलल टू बोथ HP एंड VP में से हो गया, खत्म। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। both show true length AB. अब कौन सा कंडीशन में हमको दोनों व्यू ट्रू लेंथ मिलता है? व्हेन द लाइन इज बोथ पैरेलल टू HP एंड VP। क्लियर आंसर? व्हेन यू गेट ट्रू लेंथ इन बोथ द केसेस ऑफ a line projection, when the condition is parallel to both HP and VP. Clear? Yes sir. Yes. Let's see a line which is inclined to HP and parallel to VP. For this case, line AB is inclined with respect to HP, but it is parallel to VP, and its representation is as shown, and also its orthographic pattern is shown. In this case, front view is inclined to line XY and shows true length of AB, and top view is parallel to line XY. Let's see a line which is inclined to কি বোঝা গেল তো? সেম আগের মতো যেটা আমরা ডিসকাস করলাম তখন, আলাদা তো কিছু নেই, বোঝা গেছিল তো ওটা? यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं, सेम। ये देखो लाइन का साथ पैरेलल VP के साथ, ट्रू लेंथ, इसलिए ट्रू लेंथ मिल रहा है, ठीक है। एंगल कर रहा है HP के साथ, लेकिन ड्राइंग कहाँ कर रहे हैं? VP के साथ, ठीक है। और नीचे इंक्लाइंड है, इंक्लाइन लाइन है, ठीक है ना। सिंपल, और कुछ नहीं है। XY. Let's see a line which is inclined to VP and parallel to HP. For this case, line AB is inclined with respect to VP, but it is parallel to HP, and its representation is as shown, and also its orthographic pattern is shown. In this case, देखो अगर VP के साथ इंक्लाइंड होगा तो कैसे दिखने में होगा? देख लो थोड़ा। अभी तो HP इंक्लाइन देख रहे थे ना, ये ऐसे एक्सटेंड होगा कि एंगल बनाता है यहाँ पे थीटा या फिर थीटा। अब ये थीटा जो बना रहा है, ठीक है, VP के साथ, वो हमको कहाँ से दिख रहा है? कौन सा व्यू से? टॉप व्यू से। यहाँ पे थीटा मिल रहा है उल्टा, तो ड्राइंग में HP में किया है, लेकिन एक्चुअली एंगल कौन सा प्लेन के साथ है? ভিপির সাথে আছে, এইচপি তে দেখা যাবে। ठीक है, सेम चीज मगर उल्टा, और कुछ भी नहीं है। बस यही था हम लोगों का, यहाँ पे इतना था की जरूरत है। top view is inclined to line XY
and shows true length of AB, and front view is parallel to line XY. हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास एकेडमी। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल एंड प्लेन के बीच में यहाँ पे ये देख रहे हो, ये कौन सा सॉलिड था अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले? फर्स्ट टर्म ऑफ कौन है ना। अब इसको इमेजिन करो ऐसे है, ऐसे मतलब ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, वो वर्टिकली खड़ा हुआ है। अब अगर समझो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, मतलब प्लेन में, ठीक है ना, तो आपको हमको फ्रंट व्यू क्या मिलेगा? সার্কেল সার্কেল ফ্রন্ট ভিউ পাবো। এখানে দেখছি তো এটা ধরো না ফ্রন্ট, এটা ভিপি। क्या मिलेगा हमको फ्रंट व्यू में? সার্কেল मिलेगा। আরে এই জিনিসটা আমি এঁকেছি এভাবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ট্রাপিজিয়াম পাবো। আরে কে বলছে সার্কেল ফার্কেল? এই দেখো, আরে এটা এইভাবে তো আমি এঁকেছি এইভাবে, অত পারফেক্ট নয় এটা। কোনোদিন এটা একটা লাইন, কোনোদিন সার্কেল দেখতে হবে? সার্কেল তো এইভাবে দেখতে হবে, বুঝলে? এই তো ট্রাপিজিয়ামটাই ঘুরে যাচ্ছে, এটা ঘুরে গেলে কি ট্রাপিজিয়ামটা তো ঘুরে যাবে। এই দেখো সিম্পল, এইটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি এইভাবে, এটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি এইভাবে, তাহলে কি হবে? ট্রাপিজিয়াম পাবো, তাই তো? কোন ভিউতে? এর উল্টো, এর উল্টো, এটা দাঁড় করানো আছে, ये सीधा किया हुआ है ट्रापी। ये फर्स्ट टर्म पे कौन? हम क्या बता रहे हैं, हम इसको घुमा दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा फ्रंट व्यू में? क्या मिलेगा? ट्रापीजियम है ना। और यहाँ पे एक सर्कल है सामने, पीछे एक सर्कल है, तो यहाँ से देखने पर साइड व्यू में क्या मिलेगा? बाबू একটা ছোট সার্কেল একটা বড় সার্কেল। হ্যাঁ, वेरी गुड, একটা ছোট সার্কেল একটা। आप देखो, अब तुम वीपी के बाद साइड व्यू को क्या करते हैं? खोलते हैं, ऐसे खोल दो, ठीक है। तो खोलने पे क्या मिलेगा हमको? खोलने पे यहाँ पे फ्रंट व्यू, ट्रापीजियम, और यहाँ इसके बाद साइड व्यू, ये वाला बन गया मेरा प्रोजेक्शन सिंबल। यस सर। ভুল হবে আর কখনো কেন এই সিম্বলটা এলো? এটা কি তাহলে সাইড ভিউ, আর এটা কি ফ্রন্ট ভিউ? মেকানিক্যাল মনে রাখবে, সেকেন্ড ইয়ারে অনেকজন এটা জানে না, বুঝলে? তুমি যে সেকেন্ড ইয়ারে অনেকজনকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানে না, বলতে পারবে না সিম্বলটা কোথা থেকে এলো, কথা है, বুঝলে? মানে কোনটা কি ভিউ, বোঝা গেল কনसेप्ट क्या है? ये इसको घुमा दे रहे इसलिए इसके बाद चला जा रहा है, इसलिए ऐसे दिखने में हो जाता है, ठीक है। মনে রেখো কোশ্চেন বলি, যে বলছি এটা বারবার। ভুলেই তো গেছি। আচ্ছা, এই দেখো, এই হোয়াট ইজ অর্থোরিক প্রজেকশন? বলে দেবো? বলো। Parallel to each other and perpendicular to the plane of the projection. Very good. What is orthotic projection? The projection lines are parallel to each other. The projection, the projection lines are parallel. ये parallel sign है, ठीक है। The projection lines are parallel to each other. The projection lines are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection. Okay, to the plane of projection, जिसका नहीं है लिख लो, ठीक है। To the plane of projection, PLANE, plane of projection, okay, and perpendicular to the plane of projection. The projection lines are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection. इसको और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम लोगों का স্যার বলো। স্যার আমরা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে তো অলওয়েজ ট্রু শেপ পাবো তো? অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে যদি পারপেন্ডিকুলার ভাবে দেখি তাহলে ট্রু শেপ পাবো। হ্যাঁ, ওই লাইনে আমরা কি ট্রু শেপ পাচ্ছিলাম? মানে দেখাটা ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन ছিল, তাই না? পেলাম না, ঠিক আছে। मतलब क्या है, ये है, ठीक है। ये जो लाइन निकल के जा रहा है, दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। दिस का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम लोगों ने प्रोजेक्शन का जो टाइप्स किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्शन का टाइप्स क्या क्या है? मेन टाइप्स सब पर्सपेक्टिव और पैरेलल। हाँ, वेरी गुड। प्रोजेक्शन का मेन टाइप्स है, एक है पैरेलल प्रोजेक्शन एंड दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, है ना। दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है। मैंने कराया था क्लास में सब कुछ।
एक है पैरेलल प्रोजेक्शन एंड दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, PERS PECTIV पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या, व्हाट आर द मेन टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, बता मेरे साथ साथ सभी, अभी लान हो जाएगा। क्या था? पर्सपेक्टिव और पैरेलल। पैरेलल और पर्सपेक्टिव। पैरेलल और पर्सपेक्टिव। हाँ, आप पैरेलल के अंदर क्या आता है, हम पूछेंगे कि ऑब्लिक और वेरी गुड, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक है ना, ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक एंड सेकंड क्या आता है, ऑब्लिक, ऑर्थोग्राफिक एंड सेकंड क्या आता है, ऑब्लिक, सेकंड क्या आता है, ऑब्लिक, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। फिर ऑर्थोग्राफिक को हम लोग कैसे डिवाइड किए थे, मल्टी व्यू, मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हाँ वेरी गुड, एक तो मल्टी व्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक যাদের কাছে আছে লেখাটা নিয়ে নিও, जिसके पास है मैंने करा था क्लास में, वो जिसका लिखा हुआ है दूसरा ले लेना, ठीक है। मल्टी व्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक, और एक्सोनोमेट्रिक के अंदर आता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक उसके अंदर आता है आइसोमेट्रिक, जो हम लोग का सीट का टॉपिक था, और डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक, और डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। বলতে পারবে তো? হ্যাঁ স্যার। এগুলো আগে হয়ে গেছে, এগুলো না পড়ানোর কথা নয়, তাও বলে দিচ্ছি, কারণ কোশ্চেন যখন জিজ্ঞেস করবে এসব এতে জিজ্ঞেস করবো। अब डायमेट्रिक क्या है, जिसमें दो एंगल, आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोमेट्रिक में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक है, इक्वल्स टू कत डिग्री, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। और डायमेट्रिक में क्या होता है, दो इक्वल रहता है, सपोज अल्फा इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कोई भी, ठीक है। अब हम लोग जो 7 सीट में जो किए थे, 7 सीट में जो किए थे, वो एक्चुअली कौन सा किए थे, वो मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किए थे। कौन क्या किए थे 7 सीट में, हम पूछेंगे, हम 7 सीट में किसका ड्राइंग किए थे, क्या बताओगे? मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ड्राइंग किया था, याद रहेगा? ठीक है, वी हैव ड्रॉन मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ঠিক আছে। এইগুলো টাইপ ছিল, বেসিক হলো, লাইন প্রজেকশনও হলো, মোটামুটি আছে তো অনেক কিছুই, বাপরে এমনি সময় আছে, 6 সিটে আছি তাই তো। আচ্ছা, ইয়ে কারোর কাছে সলিডস এর ভাগগুলো আছে, করেছিলাম, রীতিশা আছে বা কারোর কাছে আছে, অন্য আছে, লিখেছিলে কেউ? हाँ सर। আছে কি, আর কার কাছে আছে গো সলিডস এর ভাগগুলো, মানে একদম পড়িয়েছিলাম কি আছে সলিড? सर सर আমার কাছে জাস্ট এমনি রাফ কপি আছে স্যার। যাই হোক, লেখা আছে কি এক জায়গায়? हाँ सर, वही पॉलीहेड्रा और सॉलिड्स ऑफ, वही ठीक है। सॉलिड्स मेन कौन सा टाइप का है, ठीक है, तुम लोग देख लेना, मैंने कराया था क्लास में, किससे ले लेना, ठीक है, इतना सारा अभी नहीं होगा, ओवर, ठीक है। पॉलीहेड्रा, सॉलिड्स और रेवोल्यूशन वो सब है, ठीक है, ग्रुप में दे देना जिसके पास है, तुम लोगों का थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। फिर टेट्राहेड्रॉन किसको बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन किसको बोलते हैं, ठीक है, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये सब देख लेना, ठीक है। ट्रायंगल को रिवॉल्व करके क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, ठीक है, ऐसा ही 8 सॉरी, ट्रायंगल को रिवॉल्व करके कोन बनता है, और रेक्टेंगल को रिवॉल्व करके सिलेंडर बनता है, ठीक है। सॉलिड्स और रिवोल्यूशन। अब देखो 6 सीट में आओ, सर এমনি অবকিউব জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? क्यूब मतलब क्यूब 6 इक्वल की, इक्वल फेसेस, इक्वल की फेसेस। अब देखो ये किसका है, ये मैच बताता ही तो, देखो पहला वाला मैनुअल का जो प्रॉब्लम था, क्या था, लाइन RS measuring 52 millimeter is in HP বা 1 HP, ঠিক আছে, inclined at an angle of 40 degree to VP, the end R is 10 millimeter in front of VP। यहाँ से इतना तक ये क्या है, ये मेन मेरा क्वेश्चन है ना, तो हम कैसे करेंगे, तुमको ये ड्राइंग दिखाएंगे खोल के, ठीक है, तुमको बोलेंगे इस प्रॉब्लम का मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या बताओ,
क्या बताने के लिए बोलेंगे? क्वेश्चन सर। अब देखो जिसका कॉन्सेप्ट हो गया वो देख के बता देगा नीचे क्या है, थीटा ये है, ठीक है। तो क्या बोल देगा वो देख के ही कि द लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ किसके साथ, ड्राइंग कहाँ पे की, एचपी में। तो एक्चुअली एंगल किसके साथ कर रहा है? वीपी वीपी से। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज क्या है, ये लाइन इज ऑन एचपी है ना, इज ऑन एचपी। देखो ये जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, फ्रंट व्यू हमको रेफरेंस लाइन पे मिला है, फ्रंट व्यू हमको रेफरेंस लाइन पे मिला है ना। तो कहाँ पे होगा ये लाइन, ऐसे है, ये लाइन कैसे, ऐसे टाइप का है ना, है ना, हाँ कि ना? ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा और ये मेरा इन फ्रंट वाला डिस्टेंस है ना, इन फ्रंट वाला डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इन फ्रंट वाला डिस्टेंस कितना है, 10 है, देख रहे हो यहाँ पे 10 है, ये इन फ्रंट वाला डिस्टेंस ये 10 है। तो यहाँ ऐसे ही थोड़ा जिसका कॉन्सेप्ट है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका नहीं है थोड़ा मैनुअल का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, और मतलब ये अपना पिक्चर साइड में रख के थोड़ा ये क्वेश्चन पढ़ लेना तो आसानी होगा, ठीक है। तो मुझे ये तीनों कंडीशन चाहिए, 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ बीपी, एंगल विद वीपी, ठीक है, एंड इज ऑन एचपी, तीनों कंडीशन मुझे चाहिए, ठीक है। फिर पूछेंगे ट्रू लेंथ कहाँ पे मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पे मिल रहा है ट्रू लेंथ, कौन सा प्लेन में मिल रहा है, वहाँ पे यार कैसे क्वेश्चन बनेगा क्लियर, सब कुछ तो बोल दे रहे, इसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप इतना टेंशन मत लेना, ठीक है, बोलने के समय। इसका देखो, इसका भी क्वेश्चन देखो सेम, थीटा कहाँ किसके साथ है यहाँ पे ड्राइंग में, वीपी के साथ, तो एक्चुअली किसके साथ बना रहा है, एचपी के साथ है ना, एचपी। और ट्रू लेंथ कहाँ पे मिल रहा है, वीपी पे, तो पैरेलल किसके साथ है, वीपी पे है ना। और देखो ये कौन सा डिस्टेंस है, ये अबव एचपी वाला डिस्टेंस है, और ये इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है, दोनों डिस्टेंस हो गया, बस यही तो क्वेश्चन, यही तो पूछेंगे और क्या पूछेंगे एकदम, ठीक है, तो हो जाएगा, सब इजी है। ये लाइन हम लोगों ने डार्क क्यों किया था, টপ ভিউ উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাট অফ ভিউ কোন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি, কোন জিনিসটা টপ ভিউ, এটা কোন জিনিসগুলো টপ ভিউ, পেন্টাগোনাল পিরামিড, এই সেটা বুঝছে তো, আমি বুঝছি যে পেন্টাগোনাল পিরামিড, এই লাইনটা কিসের, এটা কার জন্য করেছিল, সাইডগুলো জেনারেটর, এই যে কোনকে এত বোঝালাম, কাদেরকে জেনারেটর বলবো কাদেরকে না, সেই জেনারেটরটা দেখো ভুলটা বলে দিলে, পিরামিডের জেনারেটর থাকে, হ্যাঁ ল্যাটারাল, স্ল্যান্ট এজ এগুলো স্যার, ঠিক আছে, ল্যাটারাল সারফেস, ঠিক আছে। তাহলে কাদের নেই, কাদের জেনারেটর, কার বললাম তো কোন সিলিন্ডারের জেনারেটর হয়, তাহলে এখানে ওটা তো কার্বেট স্যার জেনারেটর, হ্যাঁ সেটাই তো, ঠিক আছে, স্ল্যান্ট এজ হবে, এই যে দেখো স্ল্যান্ট এজ, এই দেখো স্ল্যান্ট এজ, দেখো প্রজেকশন টেনে দিলাম, এগুলো বেসিক জিনিস, মেকানিক্যাল হলে দেখো টেনে দিলাম, এই দেখো পেয়ে গেলাম আমার স্ল্যান্ট এজে টপ ভিউ, বোঝা গেল। এইভাবে তো আমরা দেখি কার কোনটা কার ভিউ। अच्छा ये एंगलটা কি করছে, ये 60 डिग्री एंगल ये कौन कर रहा है, ये 60 डिग्री एंगल पेंटागोनल पिरामिड का क्या कर रहा है, कौन कौन कर रहा है पेंटागोनल पिरामिड का, D1 क्या, कौन सा मतलब कौन सा चीज ये एंगल बना रहा है, क्या कौन सा बना रहा है, এইচপি তে তো স্যার কে বানাচ্ছে এঙ্গেলটা, কে বানাচ্ছে, বেসটা হচ্ছে না, বেস স্যার বেস, কে বানাচ্ছে, বেস না অ্যাকুরেটলি হচ্ছে না, কি অমিত কি বেসেজ বলছো, বেসেজ অমিত তো বললো নাকি বেসেজ, না স্যার বলিনি স্যার, হ্যাঁ বলিনি, বললে তো গলা শুনলাম তো, আমি এক কথা কথাই বলিনি স্যার। আচ্ছা রূপম ভুল হচ্ছে, যারা বেসেজ বলছো, বেসেজই তো বললাম, স্ল্যান্টেজ হবে, অমিত কি হবে, দেখছি স্যার দাঁড়ান স্যার, আরে দেখো বোকা তোমরা এত সব ভুলে গেলে পড়াশোনা, এর মধ্যে সব, স্যার কোশ্চেনটা একবার বলবেন, এইখানে আর क्वेश्चन पास्ट इतिहास হয়ে গেছে, দেখো सुने नाओ, एक ये पॉइंट का नाम क्या है, नीचे शुद्ध ड्राइंगটা देखो, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ड्राइंग का देखो क्या है यहाँ पे, पॉइंट का क्या है नाम, D1 है D1, और जो भी है डी है, डैश है, 1 डी है, D डैश सॉरी डी डैश सर, इस ड्राइंग में देखो डी कहाँ पे है,
यहाँ नीचे আছে डी স্যার, डी তো के বেস ऊपर, লাইনে আছে, पेंटागन में डी के ऊपर। বেস লাইনে আছে। हाँ भाई। और ये डी कहाँ है टॉप व्यू में, क्या है ये, क्या है ডি আছে। डी है। कौन तो ये क्या, ये एंगल क्या, कौन बना रहा है एंगल, ये क्या चीज है, पेंटागन। ये डी पॉइंट पेंटागन है, पेंटागन का क्या है, एपिक्स एपिक्स एपिक्स। हाय रे क्या के एपेक्स बना था, कॉर्नर कॉर्नर, সিও আর এনি আর কর্নার, अरे एपेक्स भाई एपेक्स এখানে एपेक्स এটা, एपेक्स इसको बोलते हैं एपेक्स, ये पेंटागन का कॉर्नर है, ये आइदर बेसेज जो बोल रहे हो ये बेसेज है, ये बेसेज पे है क्या, बेसेज पे अगर होता तो क्या, ये देखो ये एक बेसेज है, ए डैश बी डैश नाम मतलब क्या है, देखो ए डैश बी डैश ये रिप्रेजेंट्स बेसेज, बट डी रिप्रेजेंट्स व्हाट, डी रिप्रेजेंट्स अ कॉर्नर, डी रिप्रेजेंट्स अ कॉर्नर, राइट, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश ए डैश डी डैश व्हाट इट रिप्रेजेंट्स एन বেসেজ, নাম্বারিং দেখে ইয়ে করবে, ড্রয়িং করবে সেকেন্ড ইয়ারে, বারবার বলছি ছেলেগুলো মেকানিক্যালের, নালে সব ভুলে যাবে, দেখো সিম্পল কিচ্ছু নেই, এত কনভেনশন ডি দেওয়া আছে, একটাই পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট কার হতে পারে, একটা কর্নারের হতে পারে, এই কর্নারের উপরই তো অ্যাঙ্গেল করছে, এটাকে তো হেলাচ্ছি, কর্নারটাই 60 ডিগ্রি করছে, দ্য কর্নার অফ দি ওয়ান কর্নার, the right hand corner of the pentagonal pyramid is making an angle 60 degree with HP, বোঝা গেল জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে, this is what, this is regular pentagonal pyramid, this is what regular pentagonal pyramid, इसका एक्सिस कैसा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेस है ना, परपेंडिकुलर टू द बेस है सॉलिड, और दूसरा टाइप से कैसे हम बोल सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं, एक राइट सॉलिड एक ऑब्लिक सॉलिड, क्या है एक राइट सॉलिड जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेस रहता है, और ऑब्लिक सॉलिड सेकंड ईयर ऑब्लिक सॉलिड ड्राइंग करवे, ऑब्लिक सॉलिड का क्या होता है, बेस इंक्लाइन टू दी एक्सिस इंक्लाइन टू दी बेस, ठीक है एक्सिस इंक्लाइन टू दी बेस, एंड राइट सॉलिड में क्या होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी बेस মানে 90 ডিগ্রি, ওকে আমরা এখন সব রাইট সলিড নিয়ে করেছি, ঠিক আছে এই সেমিস্টারে, বোঝা গেল কিছু কিছু মাথায় ঢুকছে, अच्छा ये हिडन लाइन है, हिडन लाइन क्यों है, क्योंकि ये दिखा नहीं दे रहा है ना, हिडन लाइन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड, इसका नाम क्या है पूछेंगे, रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन, राइट क्यों बोल रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेस है इसलिए राइट सर्कुलर कोन, मैनुअल में लिखा है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ये किस पे खड़ा हुआ है, ये अब बताओ ये किस पे खड़ा हुआ है, ये किसके साथ एंगल कर रहा है बताओ, কর্নার কর্নার ও অ্যাঙ্গেল করছে, দাঁড়ি কর্নারের উপরে আছে, রেস্ট করে আছে, আরে বাবা কোণের কোনো কর্নার নেই, ঠিক আছে স্যার সরি স্যার সার্কেল স্যার সব উল্টো পাল্টা বলছি স্যার, अरे এইগুলো मैनुअल पढ़वे, मैनुअल 6 सीट बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है नहीं तो लैंग्वेज नहीं बता पाओगे, क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे कोन में कोई सीन्स कॉर्नर नहीं होता, इट इज अ पॉइंट ऑन द सार्कमफारेंस ऑफ ए सार्केल, ठीक আছে জেনারেটরও যে মানে জেনারেটর তো এইটা, ঠিক আছে এটা কি, এটা পয়েন্ট, ঠিক আছে it is a point on the circumference of a circle, ঠিক আছে a point on the circumference of a circle is making an angle of 45 degree, এইভাবে একটু নিজের মধ্যে একটু স্টাইল আনো, ঠিক আছে উত্তর দেওয়ার, ये क्या है, ये व्यू है ना, कौन सा व्यू है ये, लेफ्ट हैंड, अरे कोई साइड भी बोलले होगा ना, बोलते हो लेफ्ट साइड, इसमें देख सकते हैं इस तरफ बना है, ये कौन सा एंगल का प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल, वेरी गुड, ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, हाँ देखो कॉन्फ्यूज हो जाए ना, सबको बोल रहे हैं, सभी ड्राइंग हम लोगों ने फर्स्ट एंगल पोजीशन में किया है, तो ये जो बीच में जो रेफरेंस लाइन है इसके नीचे जो भी ड्राइंग है जो डार्क किया हुआ है वो हमेशा टॉप व्यू होगा अभी हम लोग का सीट में, और ऊपर सभी का फ्रंट व्यू होगा, है ना, थर्ड एंगल तो कोई किए नहीं है, ठीक है साइड व्यू जैसा है उसी के हिसाब से, ठीक है देखो 6 सीटটা তোমাদেরকে নিয়ে ডিসকাস করে দিলাম, मैं সবই তো কোশ্চেন মোডে 6 সিটে ডিসকাস করে নিলাম, কি কি পড়তে হবে, তারপরে যদি না পড়ো তাহলে শূন্য নিয়ে বাড়ি যাবে, मैं ইন্টারনালে এই অ্যাসাইনমেন্টের নাম্বার নিয়ে খুশি থাকতে হবে, আর কি করা যাবে বলো, ঠিক আছে
অনেক টাইম আছে, তা যারা একটু আজকে মন দিয়ে করছে তাদের আজকে রেডি হওয়ার কথা, পড়ারও কোনো দরকার নেই। 6 is almost completed, ठीक है। What is आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक था ना, Hi friends, there are three kinds of pictorial views available: isometric, oblique and perspective. Isometric projection is also known as axonometric projection. In this, the three dimensions of the solids are ভালোভাবে দেখতে থাকবে, এখানে অনেক কিন্তু কোশ্চেনের আনসার আছে, ঠিক আছে, অনেক কটা কোশ্চেনের আনসার আছে আইসোমেট্রিক কনসেপ্ট রিলেটেড, ঠিক আছে। equally visible and proportional to the actual dimensions. In this presentation, we'll discuss only the isometric projections and their views. So, let's construct an isometric view of a cube. It is resting on HP on one of its bases with sides parallel and perpendicular to BP. Observe its orthogonal views. It shows true shape and size of the cube. To view the other features of the cube, it is rotated about its vertical axis such that its faces are equally inclined at 45 degrees to VP. In this position, the front view shows two rectangular faces. However, the top view still appears as square. Now, to obtain the isometric view, the base এখানটা ভালোভাবে দেখবে যে আইসোমেট্রিক আমরা কি করি, যে 30 ডিগ্রি করে আঁকি কেন করি, আর পুরো तीनखाना डायमेंशन हम लोग तीनों डायमेंशन कैसे देखते हैं आइसोमेट्रिक में, ठीक है ना, वो अच्छे से देखना, ठीक है ना। क्यों देखते हैं, क्यों 30 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, 30 डिग्री बनाने से क्या होता है, ठीक है। corner 3 of the cube. Now, to obtain the isometric view, the base corner 3 of the cube is lifted, keeping the base corner 1 as it is. Here, faces A, B and C are known as isometric planes. This single view represents the isometric view of the cube. The edges 1, 5, 5, 8 and 5, 6 are referred to as isometric axes and make an angle of 120 degrees to each other. तो आइसोमेट्रिक एक्सिस कितना एक्सिस होता है, आइसोमेट्रिक एक्सिस कितना आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है, 3, वेरी गुड, 3 है ना, इस तरफ और इस तरफ। এই कार आवाज হচ্ছে। अब देखो तो फिर तो इसका मतलब कितना एंगल बनाता है, दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम पूछे दोनों आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, इसका आंसर करना। 120 ডিগ্রি। আরে 120 দুটোর মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেল বানানো মানে কি, একটা কি অ্যাঙ্গেল বানাতে পারবে, একটা লাইন অ্যাঙ্গেল বানাতে হবে, দুটো লাইন তো হওয়া চাই না। 120 डिग्री, ठीक আছে। और तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस टोटल कितना एंगल बनाता है, 360, ठीक আছে, 360 डिग्री। याद रखना इन्फॉर्मेशन। आइसोमेट्रिक एक्सिस किसको बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्लेन किसको बोलते हैं, ठीक है। पूरा देखते जाओ, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, देखते जाओ पूरा। और हम ये 30 डिग्री पे क्यों ड्रॉ करते हैं, याद अभी समझ में आया ना, 30 डिग्री पे क्यों ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग लिफ्ट करके सीधा मतलब अपने तरफ एंगल थोड़ा मोड़ रहे हैं, तीनों डायमेंशन देखने के लिए कि पीछे भी डायमेंशन हमको देखने के लिए मिले 30 डिग्री, इसलिए एंगल पे मोड़ रहे थे, ठीक है ना। चलो, These angles are known as axonometric angles. The edges 1, 4 and 1, 2 are parallel to the isometric axis and are drawn at an angle of 30 degrees to line XY. Here in isometric view, the lengths of the isometric axis are equally foreshortened by 0.82 times their true length. The isometric lines foreshortened by their true lengths are parallel to the isometric axis,
whereas non-isometric lines are not parallel to the isometric axis and they show actual lengths. In an isometric view, the isometric length of the edges is shorter by 0.82 times their true lengths. So, in practice, an isometric scale is created from which the required isometric lengths corresponding to the actual lengths can easily be picked up. जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? देखो जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं 30 डिग्री इंक्लाइन करके, अच्छा व्हाट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ना हट, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ सिंगल व्यू डायमेंशन प्रोजेक्शन। কি বললাম? सिंगल व्यू अब क्यों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा एम क्या है? ये तीनों डायमेंशन एक साथ देखने के लिए तो ना, ये क्या है? ये z है, ये z है, ठीक है, ये x है, ये y है, जो भी है, तीनों डायमेंशन एक साथ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में क्या मिलता है? या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में आपको 2D डायमेंशन मिलता है? एक साथ कितना मिलता है था जो मल्टी डायमेंशन हम लोग किए थे सीट 7 में, या जो भी है, कितना डायमेंशन देखने के लिए मिलता था? एक साथ 2 डायमेंशन, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन तो एक ही व्यू में नहीं मिलता है ना, इसलिए हम लोग मल्टी व्यू बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या, एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ सिंगल व्यू डायमेंशन प्रोजेक्शन, मतलब आइसोमेट्रिक में, एक आइसोमेट्रिक फिगर में हमको सारा डायमेंशन मिल जाता है। इस ये फायदा है, इसलिए हम लोग 30 डिग्री टिल्ट कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोग का जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। जब हम देखते हैं, ठीक है, कितना रिड्यूस होता है, ट्रू लेंथ का कितना, मतलब कितना रहता है, 0.82 टाइम्स, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक पोजीशन में पूछेंगे कि लेंथ जो हम लोग का आइसोमेट्रिक पोजीशन मिलता है कितना है ट्रू लेंथ का, क्या बताओगे? 0.82 टाइम्स, याद रहेगा, पॉइंट कितना, 82 टाइम्स। मतलब ये लाइन अगर 100 हुआ, ये लाइन अगर 100 हुआ मेरा, तो ये लाइन कितना हो जाएगा? 82, कितना हो जाएगा? 82। इसका मीनिंग यही है, ठीक है, आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो ये 0.82 या 9/11 या √2/√3 टाइम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? रेशियो क्या है, ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ का रेशियो समझ में आ रहा है? आइसो लेंथ इक्वल्स टू 0.82 टाइम्स ऑफ ट्रू लेंथ, বোঝা গেল? শুনতে পাচ্ছো? यस सर, यस सर। हाँ, তুমি যেও না কেউ। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है? आइसोमेट्रिक व्यू में ओरिजिनल डायमेंशन से ही काम होता है। क्या, किससे बनाते हैं हम लोग? ओरिजिनल डायमेंशन में ही बनाते हैं। किसमें? आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है। तो फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग जो आइसो स्केल यूज करते हैं 30 डिग्री एक, ठीक है, और एक 48 डिग्री, ठीक है। और आइसो स्केल हम लोग जो यूज करते हैं वो किसमें, किसके लिए यूज करते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए? প্রজেকশন, আইসোমেট্রিক প্রজেকশন। হ্যাঁ, প্রজেকশন। চুপচাপ বলে হবে না, এতক্ষণ তো বোঝালাম যে যারা বুঝতে পারছো না যে এই তো 30 ডিগ্রি করে করছি, এখানে 30টা কেন করলাম, ছোট লেন্থ হয়ে যাচ্ছে, বার করছি কার জন্য? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शनের जন্য। व्यू एक्चुअल लेंथ यूज करके करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया, छोटा मोटा एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डेफिनेशन बन गया। एबार ना, व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? डेफिनेशन क्या होगा? द आइसोमेट्रिक लाइंस, द प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इंक्लाइंड एट एन 30 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। वो 90 डिग्री था, इसमें क्या आ जाएगा? इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। याद रहेगा? বোঝা গেল?
আর একবার अब বলুন देखो, আর अरे ওইখানে কি ছিল ऑर्थोग्राफिक में ये यहाँ पे क्या होगा इसमें ये द पोजीशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड 30 डिग्री द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ঠিক আছে? वहां पे 90 डिग्री था तो में এবার 30 डिग्री प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ঠিক আছে? এই সেন্টেন্সটা চালিয়ে দেবে 30 ডিগ্রি রিপ্লেস করে, ঠিক আছে? 90 ডিগ্রির জায়গায়, বোঝা গেল? ঠিক আছে? অর্থোগ্রাফিকটাই তো স্যার, মানে 30 ডিগ্রি জায়গায় এটা করুন, মানে 90 ডিগ্রি জায়গায় 30 ডিগ্রি করে দিন। এবার দেখো একটু যদি প্রো লেভেলে যদি বলতে চাও নিজেকে, একটু যদি মানে টেকনিক্যালি কোয়ালিফাইড দেখা যায়, মেকানিক্যালদের বলছি, পরে তো দরকার হবে, সিএসটি দের নয় এটা, হ্যাঁ? তখন এইভাবে বলতে পারো আ সিঙ্গেল ভিউ ডাইমেনশন প্রজেকশন হ্যাভিং আলফা বিটা গামা ইকুয়ালস টু 120 ডিগ্রি টার্মড অ্যাজ আইসোমেট্রিক প্রজেকশন। দেখলে এটা স্টাইলিশ ডেফিনিশন হয়ে গেল, ঠিক আছে? কোনো এক্সটার্নালে যদি কোনো এরকম স্টাইলিশ ডেফিনিশন দাও বা কোনো অন্যদের থেকে আলাদা, তোমাকে একটা কোশ্চেন করে ছেড়ে দেয়, ঠিক আছে? এগুলো ছোট ছোট ট্রিক বলে দিলাম, এখন তো কোনোদিন কলেজে করোনি, কলেজ তো কোনো যাওইনি, জানোই না কি হয় না, ঠিক আছে? দাঁড়া বলতে দাও, ঠিক আছে? তো বারবার বলেছি এক্সটার্নালে যখন তোমাদের সেকেন্ড সেম থেকে তো দেবে এক্সটার্নাল, পুরো 3 বছর তো দেবে, দেখবে 4-5 জন যখন ঢোকাচ্ছে তোমাকে এক্সটার্নালের জন্য ঢোকায়, তো 4-5 জন একসাথে বন্ধুদের পরপর रजिस्ट्रेशन नंबर অনুযায়ী रजिस्ट्रेशन नंबर हिसाब से, तो अगर क्वालिटी है एक आंसर ऐसे दे देना कि वो फुल मार्क्स मतलब दे करके तुमको छोड़ देगा, ठीक है? बाकी को करेगा, ठीक है? तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, ठीक है ना? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ही हम थोड़ा टेक्निकली क्या वेल साउंडेड कर बना दिए, कैसे? एंड सिंगल व्यू डायमेंशन प्रोजेक्शन हैविंग अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री इज टर्म्ड एज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है? बोलो এবার কি কোয়েরি কি শুনি বলো। স্যার ওটা আমি বলছিলাম স্যার, এই আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু 120, এটা কি বুঝলাম না। আরে এতক্ষণ কি বোঝালাম, ওই আলফা অ্যাঙ্গেল, এই যে আলফা, এই যে সব ক্লাসে পড়িয়েছিলাম, বিটা গামা, ঠিক আছে? ওইগুলোকে আলফা বিটা গামা হিসেবে ধরা হয়, এটা আলফা এটা বিটা ইকুয়ালস টু গামা, ঠিক আছে? 120 ডিগ্রি করে, তো এইভাবেই ডেফিনিশনটা এক্সোনোমেট্রিক থেকে অ্যাকচুয়ালি এলাম, ওইটা হচ্ছে একদম পুরো পারফেক্ট, মানে একদম টেকনিক্যাল ডেফিনিশন, ঠিক আছে? যে যেটা পারবে দিও, যা যেরকম। Hence, the view drawn using true length is called the isometric view. On the other hand, the view drawn using isometric scale is known as isometric projection. So let's illustrate an example. A square lamina is positioned with its surface parallel to VP. Observe, its orthogonal front view ABCD gives true shape and size. Now, let's describe the isometric views. In isometric view, the horizontal lines in orthogonal view appear as inclined lines making an angle of 30 degrees with reference line. Let's mark inclined lines B', A' and C', D' equal to BA and CD. The vertical lines in orthogonal views are same in isometric views. This rhombus is the isometric view of the square lamina from left side. Similarly, take a look at the views from right side and top. So friends, we learned the basic concepts of isometric projections and drawing isometric views. We'll be continuing. বোঝা গেল? স্যার ওখানে টপ ভিউটা দেখানো হলো, ওটা স্যার বুঝতে পারলাম না কি করে। স্যার আগে নিয়ে যান ভিডিওটা। আরে স্যার টপ ভিউটা এইগুলো দেখতে হবে না, এখানে স্যার টপ ভিউটা বলছে না, এটা পড়ে স্যার, এটা একটু পড়ে। First is the isometric view of the square lamina from left side. Similarly, take a look at the views from right side and top. So, আরে স্কোয়ারটা যদি এরকম ছিল তো ওটা ওরা অন্য কিছু বলতে আছে, দেখো এরকম ছিল না, অবজেক্টটা তো এরকমই ছিল, বুঝলে? স্যার এবার বুঝতে পেরেছি। এবার দেখো, এবার আমরা ফ্রন্ট ভিউ এর ডিরেকশন দেয়া থাকে, দেখবে সেকেন্ডারি ড্রয়িং গুলোতে ফ্রন্ট কোনটা ফ্রন্ট ভিউ বুঝবে, যেটা অ্যারো দেয়া থাকে, তার মানে উল্টোটা কি হবে সাইড ভিউ। সাইড ভিউ কোন দিকে পড়বে? এইদিকে। দেখো সাইড ভিউ কিভাবে দেখবে, এইভাবে দেখছো, এই দেখো এই সেম এরকম। ফ্রন্ট ভিউ এরকম ভাবে দেখছো, দেখো বানিয়েছে সেম ভাবে। আর টপ ভিউ ভাবে দেখছো, দেখো এভাবে বানিয়েছে। বুঝা গেল? পুরো ক্লিয়ার করে দিলাম, কোনো অসুবিধা নেই।
না না স্যার কোনো অসুবিধা নেই তো কিছুই নেই। जाक आइसोमेट्रिक से छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेशन रिगार्डिंग एक्सेट्रा, ये सब रिलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, सब बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनुअल का क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है, अच्छे से। अब देखो मैनुअल में यहाँ से क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे ये क्या है, क्या बताओगे बोलो। देखिए कि आंसर दे परफेक्ट, देखिए चलिए बुझो जैसे रेडी ছিল বলো। হেক্সাগোনাল প্রিজম হেক্সাগোনাল প্রিজম স্যার বলো আর কি বলতে চাও বলো। হেক্সাগোনাল সিলিন্ডার অ্যাকচুয়ালি এই সিট অনুযায়ী বলতে হয় পারফেক্ট আনসার, এরকমই এক্সটার্নাল এরকম ভাবে কোশ্চেন করে বুঝলে, মানে এর হিসাবে, ঠিক আছে, তুমি অবজেক্ট হিসাবে বললে হবে না। বলো আর কি বলবে বলো, আর কাছে বলছো উত্তর আছে আলাদা ভালো। আইসোমেট্রিক ভিউজ অফ হেক্সাগোনাল প্রিজম। বাহ খুব সুন্দর। কে তুমি, কি নাম বলো না কেন। ও সৌরভ বেরা, বেরাই তো তোমার টাইটেল, ভুলে যাচ্ছি। আইসোমেট্রিক ভিউ অফ হেক্সাগোনাল প্রিজম, ওকে। আমাকে পুরো কমপ্লিট কোন সময় ইনকমপ্লিট আনসার দেবে না, এটাও জিজ্ঞেস করলে তো আমি বলবো হেক্সাগোনাল প্রিজম, তাহলে তফাৎটা কি। আইসোমেট্রিক ভিউ অফ হেক্সাগোনাল প্রিজম বোঝালে আনসারটা কি করে দেবে। আর এটা কি বলবে, আর হেক্সাগোনাল প্রিজম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর রাইট হেক্সাগোনাল প্রিজম, বা এটা আরো অ্যাড করি তো টেকনিক্যালি, সেকেন্ড ইয়ারে তো লাগবেই, মেকানিক্যাল ভাবে বলে দিচ্ছি। রাইট হেক্সাগোনাল প্রিজম, কারণ অ্যাক্সিস ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দি বেস। A right hexagonal prism standing on its base on HP, ঠিক আছে, कंडीशन ऐड कर दिलाम, स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, बेस HP में है इसलिए बेस में हेक्सागन है, ठीक है ना। मैनुअल में क्वेश्चन देखोगे, ये एक्सरसाइज 6 और 8 का मैनुअल का क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, 6 और 8 का, ठीक है। कंडीशन पूछेंगे ना, इसलिए 6 और 8 का पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। 6 तो बहुत ही अच्छा, 8 का भी। तो ये बन गया मेरा आंसर। और हेक्सागोनल प्रिज्म, राइट हेक्सागोनल प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑन HP। और ये क्या बन गया मेरा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक আছে, কোনো কনফিউশন নেই। তারপর ঠিক করা, এটা आइसोमेट्रिक ভিউটা না বলি ভুল। सेकंड এটা কি, सेकंड এটা ये क्या होगा, जैसे आंसर मतलब जैसे आंसर देना है उसी के हिसाब से क्या होगा, ये बताओ सेम क्या होगा ये। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ राइट पेंटागोनल पिरामिड, राइट पेंटागोनल प्रिज्म, পিরামিড বলছো। প্রিজমের অ্যাপেক্স থাকে বাবা, এটা অ্যাপেক্সটা কার আছে, পিরামিডের আছে। হ্যাঁ স্যার পিরামিড বলেছিলেন। আর ये क्या है, আইসোমেট্রিক ভিউ অফ পিরামিড। সুন্দর, বাহ, এটাকে আইসোমেট্রিক ভিউ বানিয়ে দিলে বলো। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हाँ, यहाँ पे आइसोस्केल यूज हुआ है, देख रहे हो। अगर आज का भाइवा क्लास नहीं होता तो सब उल्टा पल्टा गलत आंसर हो जाता सब। तो ध्यान से सोच समझ के देना, ठीक है। एक बार भेबे क्वेश्चनটা ভালো বলো, তাড়াহুড়ো করো না। তার মানে কি হলো, ये आइसोमेट्रिक व्यू, ये प्रोजेक्शन है, छोटा हो गया है ना। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैनुअल में भी दिया हुआ है, मैनुअल से देख लेना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। नेक्स्ट वाला क्या है, ये राइट सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, और ये आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ सिलेंडर। हाँ वेरी गुड। और ये স্পিয়ার স্যার, এটা তো ওই তো কিসের নামটা বলো বলো, এটা কি স্পিয়ার ছিল তো, রাইট বলো বলো প্রিজম, কি বলছো বলো, স্যার নামটা ঠিক ভুলে গেছি এটা। আরে আর এটা বলেছিলেন না স্যার, স্কয়ার প্রিজম তো না, করে কম্বিনেশন অফ স্কয়ার প্রিজম এন্ড স্পিয়ার। আবার নাম কি বলেছিলাম, এখানে তো দেখতে পাচ্ছ প্রিজম আঁকা আছে, এটা নিয়ে ভাবতে হয়, সর্বনাশ। এটা কি জিনিসটা, প্রিজম তো স্কয়ার প্রিজম, আর কম্বিনেশন অফ স্কয়ার প্রিজম এন্ড স্পিয়ার। অনেকজন সার্কেল রেক্ট্যাঙ্গেল বলবে, ভাগ্যিস তোমরা কেন বলনি সার্কেল রেক্ট্যাঙ্গেল, ঠিক আছে। এটা দেখে কি মনে হয় সার্কেল রেক্ট্যাঙ্গেলই তো। তো যাই হোক, কম্বিনেশন অফ এ কি স্কয়ার প্রিজম এন্ড স্পিয়ার। এন্ড এটা কি, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर। अच्छा अब देखो
ये देखो, आप देखो, हम एक और क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, ये स्फीयर ड्रॉ कैसे किया, ठीक है, ये पूछेंगे। देखो ये इंटरसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिलता है उससे हम लोग कितना ऊपर गए थे, कितना आइसो रेडियस, आइसो 15 या एक्चुअल 15, कितना ऊपर गए थे, आइसो 15 आइसो 15 ऊपर गए थे। फिर रेडियस जो बनाए थे वो कौन सा, एक्चुअल 15 लेकर के, है ना। यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं बता पाओगे 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जन का गलत हुआ था, ठीक है। ये जो हम लोग सिलेंडर बनाया है, ये कौन सा मेथड यूज करके बनाया है, नीचे वाला बेस, फोर्स सेंट्रिक मेथड, क्या फोर्स सेंट्रिक मेथड, क्या फोर्स सेंट्रिक मेथड, ठीक है। चारों पॉइंट लेकर के उसके फोर्स सेंट्रिक मेथड लिख लो। ये जो सिलेंडर का बेस जो इलिप्स बनाया है वो क्या यूज करके किया है, फोर्स सेंट्रिक मेथड। सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू इलिप्स है ना। स्फीयर का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, स्फीयर। वेरी गुड। के सौरभ, सौरभ बेरा না স্যার আমি পুলক। হ্যাঁ পুলক, বাহ পুলক ছেলেটা ক্লাসে এত কথা বলতো না, আজকে পুরো একদম। স্যার বললাম তো। ও আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো ভালো পড়ো তুমি। এখানে যাক কয়েকজন পড়াশোনা করে গেলে ভাববে যে টিচার কিছু পড়িয়েছে, টিচার মান সম্মান হলে চলে যাবে, যদিও থাকবো না স্টিল, তাও দেখো হয়ে গেছে। প্রজেকশন সিম্বল এই ওই ওই ऑल डायमेंशंस सारी एमएमটা स्मॉल এ হবে, ठीक है। स्केल 1:1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस जो डायमेंशन मैनुअल में दिया हुआ है उसी डायमेंशन में हम लोग ड्राइंग करते हैं, इसलिए स्केल 1:1 इज मैंडेटरी लिखना, ठीक है। नीचे एक्सरसाइज 8 हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 7 में से क्या पूछेंगे, कौन सा व्यू है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, कौन सा राइट हैंड साइड व्यू है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा मोटा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइन प्रोजेक्शन और पॉइंट प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ही मेन है, ज्यादातर सबका क्वेश्चन प्रोजेक्शन से ही पड़ेगा, ठीक है, सोच लो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सॉलिड्स का जिसके पास है, ठीक है, लिखा हुआ डिविजन ग्रुप में अपना दे देना, वो खुद से कर लेना, पूरा तो कराना पॉसिबल नहीं है ना ये भी, लेकिन मैंने बहुत भाईवा का क्वेश्चन ही कवर किया है, एटलीस्ट तुम लोग का टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ है ना, कुछ तो बोल पाओगे, ज़्यादा तक अगर फिर भी बोल नहीं पाओगे तो और किसी बोलो ना। 9 सीट का मैकेनिकल जो है एप्लीकेशन देख लेना, फ्लिंच कपलिंग का एप्लीकेशन क्या है, बस ये सब। थ्रेड का कौन सा क्या एंगल है, भी थ्रेड का क्या है, ठीक है, भी थ्रेड का कितना एंगल होता है, बटरेस थ्रेड का कितना, थ्रेड का सभी का एंगल याद रखना, फ्लिंच कपलिंग का यूज, रैक फाउंडेशन बोल्ट का यूज, और क्या नट बोल्ट कौन सा टेम्पररी जॉइंट है, कौन सा परमानेंट जॉइंट है, और किसका थ्रेड का सिंबल में से कौन सा अंदर रहता है बाहर रहता है। क्लियर, 5-6 का क्वेश्चन मैकेनिकल क्लियर। क्या क्या क्वेश्चन बताया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, और एंगल का थ्रेड इंपॉर्टेंट है, और नट बोल्ट का कौन सा क्या जॉइंट रहता है, बस ये छोटा, बस और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और सीएसटी का जरूरत नहीं है, 9 सीट कुछ भी नहीं है, नैन गेट नॉर गेट मुझे भी नहीं आता है, ठीक है, ड्राइंग का पार्ट भी नहीं है, लेकिन सिलेबस में था, हम लोग किए थे, ठीक है। সেকেন্ড সেমে আছে তো নর গেট অর গেট, হ্যাঁ তোমরা আছে, তোমরা তো হ্যাঁ সবারই আছে। স্যার সেকেন্ড সেমে আমাদের ড্রয়িং আছে না না নেই, ঠিক আছে। তো মোটামুটি তোদের জন্য লস হলো, থার্ড সেকেন্ড ইয়ারে অনেক প্রবলেম হবে, মুখস্থের মতন হয়ে যাবে, যেটা মেনলি সবাই করে। যাক, তো এখনই তো স্যার অর্ধেক ভুলে যাচ্ছি, সেকেন্ড সেমে এমনি ভুলে যাবো, এটা আর কি করা যাবে, এবারে ভুলে যাওয়ার জিনিস কেন, কোনো জিনিস পড়ার কেন দরকার পড়ে, তো ভোলার কিছু নেই, সবই তো মাথায় স্টোর করে নেবে, এত মেমোরি আছে মাথায়, একটু একটু অনেকদিন দেখা হয়নি তো গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। तो मोटामोटी हम लोगों ने 1 से 8 तक मोटामोटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ सॉलिड्स का डिवीजन छोड़ के मोटामोटी, ठीक है ना, लगभग कर लिया है जितना मुझे लगता है। और एक से इसका नाम अच्छे से पढ़ लेना, सभी मैनुअल एक बार गो थ्रू कर लेना सभी, ठीक है, मैनुअल एक बार गो थ्रू कर लेना, हम फिर से गूगल क्लास में एक बार दे देंगे, जिन लोग का नहीं है तो ये कर लेना। और एक्सरसाइज नामগুলো লিখবো তাই তো, নামগুলো কি एक्सरसाइज टाइटल गुलो नाम लिखबो बोलते, हां ওই टाइटल गुलो। और एक्सरसाइज 6 और 8 बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन, स्पेशली एक्सरसाइज 6, ठीक है। एक्सरसाइज 5 का ड्राइंग का प्रोसेस याद रखना, ठीक है, एक्सरसाइज 5 का ये इलिप्स और पैराबोला, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है ना, थोड़ा याद रखना मोटा मोटी ये सब क्लासरूम में टाइमलाइने अपलोड कर दो तो। हाँ हाँ,
और देखो ज्यादा तक हमने जो अभी डिस्कस किया उसमें से 90 थे 95% क्वेश्चन ये सब पूछेंगे, ठीक है, 95 क्वेश्चन ये सब पूछेंगे, ठीक है। तो आई विल एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ देम टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन। ओके रोहित, ये रिकॉर्ड क्या हो रहा था? अच्छा ठीक है, तो देखो हम ये लिंक भी दे देंगे, जो लोग सेकेंड हाफ में नेटवर्क प्रॉब्लम था, कुछ इश्यूज था, या लगता है कि हम इतना जल्दी मतलब कोप अप नहीं कर पाए, थोड़ा देख लेना, ठीक है, अच्छे से आप फिर लिख लेना कॉपी में।